கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்தின் மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। இந்த அருமையான ஓய்வு நாள் காலை வேளைக்காக கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். इस अच्छे विश्राम दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। கடந்த ஒரு மாசம் முழுவதுமாக கர்த்தர் நம்மை கண்மணி போல பாதுகாத்து இந்த நாளை காணச்சதற்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும். परमेश्वर ने हमें पिछले एक हफ्ते भर कर संभाल कर लाया, इसके लिए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देना चाहिए। அவர் செய்த நன்மைகள் ஏராளம். उसने किया हुआ भलाई बहुत अनगिनत है। நம்மளை அற்புதமாக நடத்தி இந்த நாளை காணச்சபடியாக கிருபையை கொடுத்திருக்கிறார். उसने हमें एक दिन देखने के लिए उसने अनुग्रह दिया है। அவர் செய்த நன்மைகளை எண்ணி उसने किया हुआ भलाई को याद करते हुए இந்த ஆராதனை நம்ம கலந்து கொள்ளும்படியாக इस आराधना में आप सब भाग लेने के உங்களை लिए அன்போடு நாங்கள் அழைக்கிறோம். हम आपसे प्रेम से हम विनती करते हैं। அவர் செய்த நன்மைகளை கொஞ்சம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும். जरा उसने किया हुआ भलाई को याद करके देखिए। தேவன் அருளிய சொல்லி முடியாத ஈவுக்காக ஸ்தோத்திரம். परमेश्वर ने किया हुआ हर एक उपकार को जो कह नहीं सकते हैं। நீர் செய்த நன்மைகளுக்கும் ஸ்தோத்திரம். आपने किया हुआ भलाई के लिए धन्यवाद। எண்ணி முடியாத அதிசயங்களை செய்தவரே ஸ்தோத்திரம் अनगिनत आश्चर्य काम किया, इसके लिए धन्यवाद என்று சொல்லி ऐसा कहकर நாம் தேவனுக்கு நன்றி சொல்லி हम परमेश्वर को धन्यवाद இந்த कहकर ஆராதனை துவக்கமாக इस आराधना की शुरुआत நம்ம से அவரை நோக்கி நம்ம பார்ப்போம். हम उसकी ओर देखें। அவர் கடந்த நாட்கள்ல वो पिछले दिन से கண்மணியை போல பாதுகாத்தாரே. हमें आंखों की पुतली की समान சோதனை संभाला। என்னை தேற்றி தைரியப்படுத்தினீரே. हमें वो जो संकट में और परीक्षा में हमें संभाल कर தீராத रखा। நோய்கள் எல்லாம் हर एक जो बीमारी जो அவர் था தழும்புகளால் சுகப்படுத்தினீரே. उसके घावों से हमें चंगा किया। பிதாவே நன்றி हे சொல்லுகிறோம். पिता तुझे धन्यवाद देते हैं। இயேசுவே நன்றி சொல்லுகிறோம். हे यीशु तुझे धन्यवाद देते தூய हैं। ஆவியே எங்கள் தெய்வமே நன்றி சொல்லுகிறோம். हे स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद உமக்கு देते हैं। துதி ஆராதனை செலுத்துகிறோம் என்று சொல்லி तुझे हम स्तुति और आराधना करते हैं। இந்த பாடலின் வழியாக इस गीत के द्वारा நாம் தேவ நோக்கி நம்ம हम பார்க்கலாம். परमेश्वर को नाम की महिमा करें। அவர் செய்த நன்மையில கொஞ்சம் நினைத்து பாருங்கள். उसने किया और भलाई को जरा याद करके देखिए। அவர் நம்மில் வைத்த அன்புக்காக தேவ நன்றி செலுத்துவோம். उसने किया हम पर रखा हुआ प्रेम को देख के हमें याद நாம் करें। எல்லாரும் தேவனை நோக்கி हम பார்க்கலாம். सब परमेश्वर की ओर देखें। Jesus, amen. பிதாவே நன்றி நன்றி சொல்கிறோம். இயேசுவே நன்றி சொல்கிறோம். பிதாவே நன்றி சொல்கிறோம். இயேசுவே நன்றி சொல்கிறோம். தூய ஆவியே எங்கள் தெய்வமே எல்லாம் சொல்லுவோமா? சொல்கிறோம். துதி ஆராதனை செய்கிறோம். துதி ஆராதனை செய்கிறோம். தேவன் அருளிய சொல்லி முடியா ஈவுக்கு ஸ்தோத்திரம். நீர் செய்த எல்லா நன்மைக்கும் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரமே. தேவன் அருளிய சொல்லி முடியா ஈவுக்கு ஸ்தோத்திரம். நீர் செய்த எல்லா நன்மைக்கும் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரமே. எண்ணி முடியா அதிசயங்கள் செய்தவரே ஸ்தோத்திரமே. எல்லாம் சொல்லுமா? எண்ணி முடியா அதிசயங்கள் செய்தவரே ஸ்தோத்திரமே. பிதாவே நன்றி. ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம். இயேசுவே நன்றி சொல்கிறோம். பிதாவே நன்றி சொல்கிறோம். இயேசுவே நன்றி சொல்கிறோம். கடந்த நாட்கள் கண்மணி போல
கண்மணியை போல பாதுகாத்தார். சோதனையில் என்னை தேற்றியே தைரியப்படுத்தினீரே. கடந்த நாட்கள் கண்மணி போல பாதுகாத்தீரே. சோதனையில் என்னை தேற்றியே தைரியப்படுத்தினீரே. தீராத நோய்களெல்லாம் தழும்புகளா சுகப்படுத்தினீரே. சொல்லலாம் எல்லாரும். தீராத நோய்களெல்லாம் தழும்புகளா சுகப்படுத்தினீரே. பிதாவே, உங்கள் சத்தத்தை உயர்த்தி தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம். இயேசுவே நன்றி சொல்கிறோம். பிதாவே நன்றி சொல்கிறோம். இயேசுவே நன்றி சொல்கிறோம். ஆவியே எங்கள் தெய்வமே நன்றி சொல்கிறோம். துதி ஆராதனை செய்கிறோம். துதி ஆராதனை செய்கிறோம். ஆவியே, அந்த ஆவியானவரை இந்த ஆராதனை வேளையில துவக்கத்துல அவர் நம்ம வரவேற்போமா? அவர் தூய ஆவியானவர், அவர் பரிசுத்த ஆவியானவர். நீ செய்கிறோம். ஆராதனை செய்கிறோம். ஆவியே எங்கள் தெய்வமே. தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம். ஆண்டவர் ஆராதனை வேளையில துவக்கத்துல நம்ம இடைபடும்படியாக, நம்மோடு பேசும்படியாக, ஒவ்வொரு பகுதியிலும் அவனுடைய கிருபை இறங்கும்படியாக, அவருடைய பிரசன்னத்தை உணரும்படியாக, அவருடைய சூத்திர வல்லமையை நம்ம பெற்று தேவனை ஆராதிக்கும்படியாக, ஒவ்வொரு பகுதியிலும் அவனுடைய பிரசன்னம் இறங்கும்படியாக, மகிமை தேவன் ஆலயத்தில் உலாவும்படியாக, நீங்க இருக்கிற இடத்துல உலாவும்படியாக ஆராதனை செய்கிறோம். துதி ஆராதனை செய்கிறோம். ஆராதனை செய்கிறோம். இயேசுவே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. यीशु आपको धन्यवाद. நாங்கள் துதி ஆராதனை நாங்கள் செய்கிறோம் ஐயா. आपको हम स्तुति आराधना करते हैं. நீர் செய்த நன்மைகள் எத்தனை எங்களுடைய வாழ்க்கையில உண்டு ஐயா. आपने किया भलाई कितने सारे हैं. நீர் செய்த நன்மைகளை நினைத்து आपने किया भलाई को याद करके இந்த காலை வேளையில इस सुबह के समय உம்மை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஐயா. हम आपकी ओर हम देखते हैं. தாவீது சொல்லுகிறான், दाऊद कहता है, கர்த்தர் நன்மை செய்தபடியா परमेश्वर ने मुझ पर भलाई किया நான் है, அவரை பாடுவேன். इसलिए मैं उसकी स्तुति गान நீர் गाऊंगा. எங்களுக்கு நன்மை செய்தபடியா आपने हम पर भलाई किया உம்மை है. நாங்கள் துதிக்கிறோம். हम आपको धन्यवाद देते உம்மை हैं. நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம். हम आपकी आराधना करते உம்முடைய हैं. சமூகத்தில் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் ஐயா. आपके चरणों तले हम आए हैं. இந்த ஜெப நேரத்தை முற்றிலுமாக इस प्रार्थना का समय को पूरी तरह से இந்த ஆராதனையை நீங்க முழுப்பேற்படுத்திக் கொள்ளும்படியாக செபிக்கிறோம். इस आराधना को आप भी परमेश्वर अपने हाथ में लीजिए. ஒவ்வொரு பகுதிகளிலும் हर एक भागों में ஆண்டவருடைய நாமம் மகிமைப்படும்படியாக, परमेश्वर के नाम महिमा होने के ஆண்டவரே लिए உம்மை நாங்கள் உயர்த்தி நாங்கள் பாடும்படியாக, हम आपको ऊंचा करके गाने के உம்முடைய लिए பிரசன்னத்தால் எங்களை ஆண்டவரே நீர் மூடும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம். आपकी प्रसन्नता से हमें भर लीजिए. நீர் பரிசுத்தமுள்ள தேவன், आप पवित्र எங்களை परमेश्वर, பரிசுத்தப்படுத்துவீராக. हमें आप पवित्र कीजिए. எங்களை ஆண்டவர் உம்முடைய வல்லமையினால நிரப்பும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம். आप हमें अपने सामर्थ्य से भर दीजिए. இந்த ஆராதனைக்கு விரதம் எழும்புகிற इस आराधना का विरोध उठने वाले வானமண்டலத்தின் பொல்லாத ஆவிகளை, आकाश मंडल के दुष्ट आत्माएं, வானமண்டலத்தின் சேனைகளை आकाश मंडल की सेनाओं, இயேசுவின் நாமத்தினால यीशु मसीह के नाम से நிர்மூலமாக்கி நாங்கள்
நாங்கள் செபிக்கிறோம். अब उसे मिटाते हैं। இந்த ஆராதனை பங்கு கொள்ளுகிற ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளை வாழ்க்கையிலும் इस आराधना में भाग लेने वाले हर एक जीवन அவர்கள் விடுதலையோடு ஆராதிக்கத்தக்கதாக, छुटकारा के साथ आराधना ஆண்டவரே करें, விடுதலையோடு பாடத்தக்கதாக छुटकारा के साथ गीत எங்கள் गाएं। தேவன் அற்புதமான காரியங்களை செய்யும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம். हमारा परमेश्वर अद्भुत काम कीजिए। நாமத்தை உயர்த்துகிறோம், आपका नाम को ऊंचा உம்மை करते हैं, தாழ்த்துகிறோம். अपने आप को हम झुकाते நீர் हैं। பெருக நாங்கள் சிறுகணும். आप बड़े और हम घटे। இயேசுவின் மூலம் ஜெபங்களும் நல்ல தகப்பனே, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, ஆமென். आमीन। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாம மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। நம்ம 2 பாடலை படித்து हम 2 गीत गाकर நாம் தேவனை நோக்கி நம்ம பார்க்கலாம். हम परमेश्वर की ओर हम देखें। நம்ம முதலாவது தமிழ் பாடலை படிக்கலாம், पहला हम एक तमिल गीत गाएं, அதற்கு பிறகு ஹிந்தி பாடலை படித்து उसके बाद हम हिंदी गीत गाकर தேவனை நோக்கி நம்ம பார்க்கலாம். हम परमेश्वर की ओर देखें। நீங்க எங்களோடு கூட आप भी हमारे साथ இந்த ஆராதனையில் நீங்க கலந்து கொள்ளும்படியாக, इस आराधना में भाग लेने के நீங்க लिए எங்க இருந்தாலும் பரவாயில்ல, आप जहाँ कहीं भी बैठिए, நீங்க இருக்க இடத்திலேயே जहाँ आप बैठे हो, நீங்கள் தேவனை ஆராதிக்கும்படியாக, परमेश्वर की आराधना करने के பாடல்களை लिए, படிக்கும்படியாக गीत गाने के लिए உங்களை நாங்கள் அன்போடு நாங்கள் கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம். आपको हम प्रेम से विनती करते हैं। ஆண்டவர் பாடல் வழியாக அவர் பேசுகிறவர், परमेश्वर गीतों के द्वारा हमसे बातें வசனம் करता है, மூலமாக அவர் பேசுகிறவர், वचन के द्वारा हमसे बात करता ஜெபத்தின் है, மூலமாக விடைபடுகிறவர். प्रार्थना के द्वारा हमसे அந்த मिलता ஒவ்வொரு है। பகுதியிலும் इसलिए हर एक நீங்கள் भागों மிக में கவனமாக बड़े ध्यान से தேவனை ஆராதிக்கும்படியாக, परमेश्वर की आराधना உங்க करने, சிந்தனைகள் சிதறாதபடிக்கு आपका मन यहाँ वहाँ न मत भटकता எல்லாரும் हुए, நீங்க ஆயத்தமா இருக்கும்படியாக आप सब तैयारी உங்களை से அன்போடு நாங்கள் கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம். आपसे हम प्रेम से विनती தமிழ் करते हैं। பாடலை படிக்கலாம். एक तमिल गीत गाएं। அநாதி தேவன் அடைக்கலமே, நித்திய புயங்கள் ஆதாரமே, அந்த பாடலை படித்து தேவ நாமத்தை நம்ம உயர்த்தி நம்ம மகிழ்ந்து நம்ம பாடலாம். அநாதி தேவனுன் அடைக்கலமே, அவன் நித்திய புயங்களும் ஆதாரமே, அநாதி தேவனும் அடைக்கலமே, அவன் நித்திய புயங்களும் ஆதாரமே. இந்த தேவன் என்றென்றும் உள்ள சதா காலமும் நமது தேவன், மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்திடுவான். அநாதி தேவன். எல்லாம் கரங்களை தட்டி உற்சாகமாக வீட்டிலிருந்தே படிக்கலாம். களும் ஆதாரமே, அநாதி தேவனும் அடைக்கலமே, அவன் நித்திய புயங்களும் ஆதாரமே. கருணைத்தாலே இழுத்து கொண்டார் தூய தேவ அன்பே, கருணைத்தாலே இழுத்து கொண்டார் தூய தேவ அன்பே. யுவனாந்திரத்தில் நயங்காட்டி உன்னை இனிதாய் வருந்தி அழைத்தார். இந்த தேவன் என்றென்றும் உள்ள சதா காலமும் நமது தேவன், மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்திடுவார். அநாதி தேவனும் அடைக்கலமே, அவன் நித்திய புயங்களும் ஆதாரமே, அநாதி தேவனும் அடைக்கலமே, அவன் நித்திய புயங்களும் ஆதாரமே. கனகப் பாதை தாரிரோளில் தூய தேவ ஒளியே, கனகப் பாதை தாரிரோளில் தூய தேவ ஒளியே. அழுகை நிறைந்த பள்ளத்தாக்குகளை அரும் நீருத்தாய் மாற்றினாரே. இந்த தேவன் என்றென்றும் உள்ள இவர்தான் உங்களை சதாக்கள் நடத்துகிற தேவன், மரண
பரியந்தம் நம்மை நடத்திடுவார். அநாதி தேவனோ அடைக்கலமே, அவர் நித்திய புயங்களும் ஆதாரமே. அநாதி தேவனோ அடைக்கலமே, அவர் நித்திய புயங்களும் ஆதாரமே. கிருபை கூர்ந்து மனதுருகும் தூய தேவ அன்பே, கிருபை கூர்ந்து மனதுருகும் தூய தேவ அன்பே. உன் சமாதானத்தின் உடன்படிக்கைகளை உண்மையாய் கர்த்தர் காத்துக் கொள்வார். இந்த தேவன் என்றென்றும் உள்ள சதா காலமோ நமது தேவன். மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்திடுவார். அநாதி தேவனோ அடைக்கலமே, அவர் நித்திய புயங்களும் ஆதாரமே. அநாதி தேவனோ அடைக்கலமே, அவர் நித்திய புயங்களும் ஆதாரமே. வறண்ட வாழ்க்கை செலுத்திடுதே தூய தேவ அருளால். வறண்ட வாழ்க்கை செலுத்திடுதே தூய தேவ அருளால். நித்திய மகிழ்ச்சி தலை மேலிருக்கும், சஞ்சலம் தவிப்போம் ஓடிப்போம். இந்த தேவன் உள்ள சதா காலமோ நமது தேவன். மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்திடுவார். அநாதி தேவன், அவர் தான் அடைக்கலம், அவர் புயங்கள் உங்களுக்கு ஆதாரம், உங்களும் ஆதாரமே. அநாதி தேவனும் அடைக்கலமே, அவர் நித்திய புயங்களும் ஆதாரமே. ஆனந்தம் பாடி திரும்பியே வா தூய தேவ பலத்தால். ஆனந்தம் பாடி திரும்பியே வா தூய தேவ பலத்தால். சீயோன் பர்வதம் உன்னை சேர்த்திடுவான், சந்ததா மகிழ்ச்சி அடைவார். இந்த தேவன் என்றென்றும் உள்ள சதா காலமோ நமது தேவ. மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்திடுவார். உங்களை நடத்துவார். ஆமென். அடைக்கலமே, அவர் நித்திய புயங்களும் ஆதாரமே. அநாதி தேவனோ அடைக்கலமே, அவர் நித்திய புயங்களும் ஆதாரமே. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब अभी एक हिंदी गीत गाएंगे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता हूँ प्रभु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। ये हफ्ता भर परमेश्वर ने हमें संभाला है, हमें चलाया है, हमें खिलाया, हमें पिलाया है, हमें संभाला है। वो सब याद करते हुए ये गीत को हम लोग मिल के ताली बजाकर खुशी के साथ गाइए। धन्यवाद कहता हूँ प्रभु, स्तुति में करता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता प्रभु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा।
राजा, धन्य यीशु राजा। अब तक संभाला धन्य राजा, अब तक संभाला धन्य राजा। नया दिन दिखलाया धन्य राजा, नया दिन दिखलाया धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता प्रभु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। शरण स्थान घट मेरा धन्य राजा, शरण स्थान घट मेरा धन्य राजा। आराम शांति देता धन्य राजा, आराम शांति देता धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता प्रभु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। संकट में रक्षा की धन्य राजा, संकट में रक्षा की धन्य राजा। चमत्कार किया है धन्य राजा, चमत्कार किया है धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता प्रभु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। मुझको उठाया है धन्य राजा, मुझको उठाया है धन्य राजा। चंगा किया है धन्य राजा, चंगा किया है धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता प्रभु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। मेरा तू मित्र बना धन्य राजा, मेरा तू मित्र बना धन्य राजा। माता सा प्यार दिया धन्य राजा, माता सा प्यार दिया धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता प्रभु। धन्य यीशु राजा, 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 धन्य यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम एक भजन संहिता पढ़ेंगे। भजन संहिता 75, सैम्स 75। प्रार्थना। परमेश्वर आपके वचन पढ़ने के लिए हमारी हृदय की आंखें खोल दो। आमीन।
भजन संहिता 75 सैम्स 75। मैं एक पढ़ूंगी, मेरे पीछे पढ़िए आप। हे यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। जब ठीक समय आएगा तब मैं आपकी ठीक न्याय करूंगा। நியமிக்கப்பட்ட காலத்திலே யதார்த்தமாய் நியாயம் தீர்ப்பேன். जब पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत डोल रही है, तब मैं ही उसके खंभों को स्थिर करता हूँ। मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो, और दुष्टों से सींग ऊंचा मत करो। வீம்புக்காரை நோக்கி வீம்பு பேசாதேங்கள் என்றும் துன்மார்க்கரை நோக்கி கொம்பை உயர்த்தாதென்றும் சொன்னேன். अपना सिंह बहुत ऊंचा मत करो, न सिर उठाकर डिड़ाई की बात बोलो। क्योंकि बढ़ती न तो पूर्व से, न पश्चिम से, और न जंगल की ओर से आती है। கிழக்கிலும் மேற்கிலும் வனாந்திர திசையிலிருந்து ஜெயம் வராது. परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। यहोवा के हाथ में कटोरा है, जिसमें दाख झाग वाला है, उसमें मसाला मिला है और उसमें से मिला है। निश्चय उसकी दर्शन पृथ्वी के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे। கலங்கி பொங்குகிற மதுபானத்தினால் நிறைந்த பாத்திரம் கர்த்தருடைய கையில் இருக்கிறது. அதிலிருந்து வாரிக்கிறார். பூமியில் உள்ள துன்மார்க்க யாவரும் அதன் மண்டல்களை உறிஞ்சி குடிப்பார்கள். परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूंगा, मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। दुष्ट के सब सिंहों को मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मी के सिंह ऊंचे किए जाएंगे। துன்மார்க்குடைய கொம்புகளை எல்லாம் வெட்டி போடுவேன், நீதிமானுடைய கொம்புகளோ உயர்த்தப்படும். पढ़ने वाला भजन संहिता समाप्त हुआ। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। इतना समय हम गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति किए। अभी हम लोग थोड़े समय परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। ये बहुत ही मुख्य समय, जो भजन हमने अभी पढ़ा सैम्स चैप्टर 75, उस भजन में से कुछ कार्य, एक या दो कार्य हम लोग ध्यान करेंगे। परमेश्वर हमको इस वचन को ध्यान करने के लिए मदद करेगा। हम लोग क्या ध्यान करने जा रहे हैं, या फिर जो वचन हम लोग पढ़ रहे हैं उसे हमेशा अपनी जो जीवन है उससे हमें कनेक्ट करना चाहिए। तभी जो भी वचन हम लोग ध्यान करते हैं उसका कुछ उपयोग होता है। ऐसा नहीं कि कुछ वचन पढ़े, कुछ वचन ध्यान किए, ऐसे ही छोड़ दिए और चले गए, ऐसा नहीं। उसके बदले उस वचन को पढ़कर एक वचन ध्यान किए तो भी उसको ध्यान कर हमारे जीवन में उसे क्या करना है, उपयोग में लाना है। तो आज हम लोग ध्यान करने के लिए लिया हुआ जो भजन है सैम्स चैप्टर 75। यह भजन अगर आप देखेंगे तो यह भजन दाऊद ने नहीं लिखा है, यह भजन आसाफ ने लिखा है। तो आसाफ के द्वारा लिखा हुआ यह भजन, इस भजन में क्या हमें सीखने मिलती है वो हम लोग देखेंगे। इसका हेडलाइन अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का न्याय। तो इस अध्याय में हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह से न्याय करता है। हमारे जीवन में जब संकट या वेदना या कुछ समस्या आती है तो परमेश्वर उसमें किस तरह से क्रिया करता है, या फिर कुछ समस्या आते समय हमारी जो स्थिति रहती है वो किस तरह से रहती है। वो न्याय को देखते समय हम न्याय के लिए कहाँ पर जाते हैं, तो ये सब हम लोग थोड़ा सा ध्यान करने की कोशिश करेंगे। इसमें आप पहला वचन देखेंगे तो इसमें लिखा है, हे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते, हम तेरे नाम की धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है और तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। सबसे पहला वचन में ये आसाफ जो है परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करते हुए ये जो भजन है इसको आरंभ करता है। तो दूसरा वचन को आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूँगा। ठीक समय, इसमें क्या लिखा है, मैं आप ही न्याय करूँगा, मैं ही न्याय करूँगा। परमेश्वर ही न्याय करेगा, लेकिन कब, जब ठीक समय आएगा तब परमेश्वर खुद ही ठीक ठीक रीति से न्याय करेगा। हम सब ये जानते हैं कि हमारा परमेश्वर न्यायी है, वो बराबर रीति से किसी के और भी पक्ष, किसी का भी पक्ष ना लेते हुए, जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है, उस गलत को गलत बताते हुए सही को सही बताते हुए ठीक तरह से न्याय करने वाला परमेश्वर है। हम कितने भी अच्छे हो, हम परमेश्वर का कितना भी प्रिय हो, लेकिन अगर हम कोई गलती करें तो वो गलती ही है। परमेश्वर ये नहीं कहेगा कि ये मेरा प्रिय है करके इसको छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं है।
गलत जो है वो गलत है, जो पाप जो है वो पाप है। इसमें क्या लिखा है कि परमेश्वर में जब ठीक समय आएगा तब वो ठीक समय में वो खुद ही क्या करेगा, न्याय करेगा। हमारा परमेश्वर ठीक समय पर न्याय करता है। हमारे जीवन को ज़रा सोच कर देखिए, हमारे जीवन, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ समस्या के बीच में से हम सब गुजरते हैं। एक समय में हम कितने भी अच्छे हो या बुरे हो, हर एक व्यक्ति को इस समस्या के बीच में से या कुछ प्रॉब्लम्स के बीच में से गुजरना ही पड़ता है। तो उस समय में हमें कभी कभी हमें लगता है कि हमारा कुछ न्याय नहीं हुआ है या कुछ लोग हमारे विरुद्ध कुछ किए हैं, ऐसा हमें अनेक बार लगता है, या कोई कार्यों में हमें न्याय नहीं मिला है करके हमें जो फील होता है। तब हम लोग क्या करते हैं, किसी कोई मनुष्य, कोई बड़े व्यक्ति कोई हो, उसके पास न्याय के लिए दौड़ते हैं ताकि वो हमारे पक्ष में आकर वो हमारे पक्ष की ओर बातें करे करके हम लोग सोचते हैं। लेकिन अधिक समयों में अगर इसको हम लोग देखेंगे तो प्रैक्टिकली ज़रा सोच कर देखेंगे तो वो मनुष्य हमारे ओर आएगा, हमारे संग बातें करेगा, हमारे पक्ष में भी बातें करेगा, लेकिन अंत में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। जिस व्यक्ति को हम लोग बहुत बार प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बुलाए जाते हैं, उनके द्वारा ही प्रॉब्लम और भी बड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार के कार्य हमारे जीवन में हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर धीरज नहीं है। इस वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर ठीक समय में मतलब परमेश्वर का समय, आपका समय नहीं। आपको और हमको ये न्याय कभी चाहिए? तुरंत चाहिए। आज कुछ हुआ तो हमको न्याय कभी चाहिए? आज ही चाहिए। आज कुछ हुआ तो हमको न्याय कभी चाहिए? कल ही चाहिए, या फिर आज का आज ही सब खत्म करना चाहिए। ये हमारे लिए न्याय है, ये हमारा समय है? नहीं, न्याय जो है वो ठीक समय में, वो परमेश्वर का समय में। परमेश्वर जो भी कार्य करता है वो आपके समय में नहीं करेगा। परमेश्वर जो भी कार्य करेगा वो अपना समय में करेगा। परमेश्वर का एक समय है। परमेश्वर देखता है सब आपके अंदर धीरज है क्या, आपके अंदर वो सहनशीलता है क्या, आपके अंदर वो परमेश्वर के लिए प्रेम है क्या। जब आप जो न्याय, आपके जीवन में अगर कुछ न्याय नहीं हुआ है, उस स्थिति में भी क्या आप परमेश्वर की स्तुति करते हो क्या? क्या आप परमेश्वर की उतने ही करीब जैसे पहले थे अब भी उतने ही करीब हो क्या? वो सब परमेश्वर जांच कर देखता है। इसीलिए परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करने के लिए या हमारे जीवन में कुछ करने के लिए थोड़ा समय लेता है। वो परमेश्वर अपने समय में, ठीक समय में क्या करता है? काम करता है। 7वां वचन में देखेंगे तो क्या लिखा है? परमेश्वर ही न्यायी है। इस संसार में या इस पूरे दुनिया में कोई और न्याय नहीं, कोई और न्यायी नहीं है। कोई भी हो इस संसार में अगर आप देखेंगे तो उनके न्याय में कुछ ना कुछ गलती या कुछ ना कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ निकल आ जाती है। लेकिन परमेश्वर जब न्याय करने के लिए खड़ा होता है तब उसमें कोई भी पक्षपात नहीं, उसमें कोई भी गलती नहीं। और परमेश्वर अपने समय में ठीक रीति से क्या करता है? न्याय करता है। इसमें अगर आप एक और बात चीज़ देखेंगे तो ये न्याय के बारे में अगर आप देखेंगे तो समझो हम अपने आप को खड़ा करके देखते हैं कि कुछ समस्या या कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो हम क्या करते हैं? तुरंत हमारे मन में क्या आता है? समझो कोई हमारे विरुद्ध कुछ बोल दिया या हमारे विरुद्ध कुछ कार्य किया तो हमारे मन में क्या आता है? छोड़ो, जाने दो, परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर उसको देख लेगा, परमेश्वर उसको मारने दो, ऐसा सब हमारे मन में आता है। या फिर परमेश्वर उसको कुछ करने दो, मैं कुछ नहीं करूँगा लेकिन परमेश्वर उसको कुछ करने दो, ऐसा हम लोग सोचते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें वो जो परमेश्वर का कार्य है परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि परमेश्वर उसे मार दे या परमेश्वर उसे उसके जीवन में कुछ उसे दंड दे, वो हमारा काम नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं सिखाता। कोई मनुष्य हमारे विरुद्ध कुछ करे तो भी हमें उसे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ करें या ये नहीं कि परमेश्वर कुछ करे, या फिर कुछ लोग ठहर कर रुके रहते हैं या फिर उसको देखते रहते हैं। वो कुछ नहीं करेंगे, वो छोड़ देंगे, लेकिन देखते रहते हैं उनका जीवन कि परमेश्वर उनके जीवन में कुछ बुरा कर रहा है क्या, परमेश्वर उनको मार रहा है क्या, परमेश्वर उनको कुछ कर रहा है क्या, ऐसे सब देखते रहते हैं कुछ लोग। ऐसा हमें नहीं देखना है। परमेश्वर हमें उसके लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर न्यायी है, वो न्याय करेगा। जो आपके ऊपर हाथ उठाता है, जो आपके ऊपर आपके खिलाफ आता है, परमेश्वर उसको उसके लिए उसका न्याय परमेश्वर जरूर करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके ताक में बैठे रहे या फिर आप उसको देखते रहे, उसका इंतज़ार करते रहे। हमारा कार्य वो नहीं है। परमेश्वर न्यायी है, वो क्या करेगा? ठीक समय में न्याय करेगा। एक दूसरे को क्षमा कर कर हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है।
परमेश्वर हमें इसीलिए बुलाया है। परमेश्वर ने अपना प्रेम और प्रेम की आत्मा को परमेश्वर इसीलिए हमारे अंदर डाला है कि हम एक दूसरे को क्षमा कर कर आगे बढ़े। तो जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर खुद वो ही न्यायी है और वो न्याय कभी करेगा, अपने समय में करेगा। परमेश्वर का एक समय, वो अपने समय में कार्य करता है। हमें क्या करना है? धीरज के साथ रहना है। और दूसरा एक कार्य हम लोग देखेंगे घमंड के बारे में। जो ये 4 वचन में क्या लिखा है? मैंने घमंडियों से कहा घमंड मत करो और दुष्टों से कि सींग ऊंचा मत करो। तो एक आसाप जो है वो क्या कहता है कि हमें क्या नहीं करना है? घमंड नहीं करना है। और दुष्टों से क्या करता है, क्या बोलता है कि अपना सींग ऊंचा मत करो। अधिक समय में ये घमंड जो है हमारे अंदर अनजाने में से ही अधिक समय में आ जाती है। अनेक लोग के जीवन में हम लोग कहेंगे हम लोग बहुत दीन हैं, हम सबसे दीन हैं, एक दूसरे के सामने हम लोग दीनता के साथ रहने की प्रयास करते हैं, या फिर किसी के सामने कुछ जो बड़े हैं उसके सामने कुछ छोटा कार्य करेंगे तो हमारे मन में आ जाता है कि हम कितने दीन हैं। ऐसा नहीं है, ये सब दिखावे का कार्य नहीं करना है। सचमुच का दीनता हमारे अंदर रहनी चाहिए। सचमुच की दीनता हमारे हर एक दिन की जो जीवन है उसमें रहनी चाहिए। अनेक लोग के जीवन में ये जो घमंड है जाने या अनजाने से, वो लोग ना भी जानते रहेंगे लेकिन फिर भी ये घमंड अंदर आ जाती है। तो हमें इससे बहुत ही हमें क्या करना है? जागरूक रहना है। क्योंकि 10वां वचन में देखो क्या लिखा है? दुष्टों का सब सींग को वो क्या करेगा? काट डालेगा, परंतु धर्मियों का सींग ऊंचा किया जाएगा। दुष्टों का सींग परमेश्वर क्या करेगा? काट डालेगा। तो हमें क्या करना है? इस संसार से बचकर, ये जो दुष्ट का जीवन है, दुष्ट लोग जो हैं, इन सब से हमें अलग होकर, इस संसार से हमें अलग होकर, परमेश्वर ने हमारे लिए लहू बहाकर हमें अलग किया है इस संसार से। क्यों? परमेश्वर के लिए जीने के लिए, इन दुष्टों से अलग होकर जीने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, उनको परमेश्वर की ओर लेकर आने के लिए। ये नहीं कि हम उनके साथ ही बैठकर खाए पिए सब कुछ करें और उनके साथ ही मिलकर जैसे उनका गुण है वो गुण हमारे अंदर आए, वैसा नहीं। हमारा गुण उनके अंदर जाना चाहिए। हमारी अंदर जो पवित्र आत्मा है वो हमसे निकलकर उनके अंदर जाना चाहिए। तो वैसा ही परमेश्वर चाहता है। तो हम घमंड से दूर रहकर हमें रहना चाहिए। उसके नीचे क्या लिखा है? परंतु धर्मियों का सींग ऊंचा किया जाएगा। अगर इसमें ऊपर का वचन में क्या लिखा है? दुष्ट का सींग ऊंचा मत करो, घमंड मत करो। तो दुष्ट लोग अपना सींग को ऊंचा करना चाहते हैं। तो हमें, वो लोग क्या सोचते हैं? एक दूसरे के सामने, दूसरे व्यक्ति के सामने अपने आप को बड़ापन करके बात करते हैं, अपने आप के बारे में कुछ घमंड के साथ या फिर कुछ बड़े कार्य कहकर अपने आप को बड़ा ऐसा दिखाना चाहते हैं। वो लोग कौन हैं? वो लोग दुष्ट हैं। वो लोग कौन हैं? वो लोग अधर्मी हैं। तो उनके समान हम लोग न रहते समय, हम लोग धीरज के साथ परमेश्वर के प्रेम में हम लोग ठहर कर रुकते समय, परमेश्वर का समय के लिए हम लोग ठहरेंगे तो उनके लिए क्या कहा गया है? वो लोग कौन है? धर्मी लोग हैं। और उनको अपना सींग को ऊंचा करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग अपने बारे में दूसरों के सामने जाकर बड़प्पन की बातें बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो सब परमेश्वर देखेगा। इसमें क्या लिखा है? परंतु धर्मियों का सींग ऊंचे किए जाएंगे। ऊंचे किए जाएंगे लिखा है, मतलब ऊंचे किया जाएगा। हमें करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा कार्य नहीं है। हमारा कार्य केवल इतना है, परमेश्वर के सम्मुख में हमें धीरज के साथ, हमें परमेश्वर के सम्मुख में एक अर्पणता के साथ, घमंड के बिना अपने आप को अर्पण करते हुए हमेशा परमेश्वर के सम्मुख में रहना चाहिए। और न्याय के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के द्वार में खड़ा रहना है, किसी और के द्वार में नहीं, रिश्तेदार के द्वार में नहीं, या पहचान वाले के द्वार में नहीं, या मित्र के द्वार में नहीं। कुछ समस्या आए, कुछ भी आए, हमें क्या करना है? परमेश्वर के द्वार में खड़ा रहना है, क्योंकि वही न्यायी है, क्योंकि परमेश्वर ही न्यायी है। इसमें लिखा है परमेश्वर ही न्यायी है। 7वें वचन में देखो, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वही आपके लिए न्याय कर सकता है और कोई नहीं, वही है। तो हमें क्या करना है? उसके सम्मुख में अर्पण कर हमें हमेशा उसके सम्मुख में आना है। ठीक है, हम लोग थोड़े समय अभी अपने सर को झुकाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। अच्छे वचनों को हमने देखा। परमेश्वर के सम्मुख में हमें क्या करना है? अपने आप को अर्पण करते हुए, परमेश्वर ही न्यायी है, वो न्यायी परमेश्वर की ओर हमें क्या करना है? हमारी नज़र उसकी ओर रहना है, दीनता के साथ, दीनता के साथ। आज अनेक लोगों को देखेंगे तो ये दीनता अनेक लोगों के जीवन में नहीं है। हमारे जीवन में कुछ हो या ना हो, कुछ नहीं भी रहेगा, लेकिन फिर भी बड़प्पन के साथ बात करने के लिए लोगों को बहुत पसंद है
किसी के सामने अपने आप को नीचा नहीं दिखाना है। उनसे मैं बड़ा हूँ, उनसे मैं दौलत में भी बड़ा हूँ, या उनसे मैं पढ़ाई में बड़ा हूँ, मैं उनसे कुछ 2 शब्द अधिक पढ़ लिया, या वो कुछ बीकॉम पे पढ़ा है, मैं इंजीनियर हो चुका हूँ, वो ये किया है, मैं ये किया हूँ, तो वो सब बोल कर दिखाते हैं अनेक लोग। ये नहीं, परमेश्वर ने इसके लिए आपको नहीं बुलाया है। अपना छाती पीट कर लोगों के सामने बड़प्पन के साथ बोलने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने आपको बुलाया है दीनता के साथ, धीरज के साथ, परमेश्वर के सम्मुख में रहने के लिए, या दूसरों को, ये परमेश्वर का जो धीरज है, परमेश्वर ने जो दीनता आपको दिखाया है, वो पर दूसरों को दिखाने के लिए परमेश्वर ने क्रूस पर आखिरी जो रक्त बहने तक अपने आप को उसने दीन किया, अपने आप को उसने अर्पण किया। तो आप और हम कौन हैं? आप और हम कौन हैं? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो कुछ भी कर सकता था। वो जब इस पृथ्वी में था वो कुछ भी कर सकता था। वो क्रूस पे था, लोग कह रहे थे नीचे उतर कर आओ और हमें प्रूव करो। वो नीचे उतर कर प्रूव कर सकता था, लेकिन उसकी ज़रूरत थी क्या? नहीं। तो हमारे जीवन में भी हमें हमेशा जांच कर देखना है कि इसकी ज़रूरत है क्या। या हम कुछ करते समय जांच कर देखेंगे कि परमेश्वर इसकी ज़रूरत है क्या। आज अपने आप को अर्पण करके देखिए परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर आपकी दीनता मुझे दीजिए, आपकी दीनता मुझे दीजिए। मुझे अपना सींग को ऊंचा नहीं करना है, दूसरों के सामने छाती पीट कर हमें बड़ा है, बड़ा हूँ ऐसा नहीं दिखाना है। अपने आप को दीन करने के लिए परमेश्वर अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह दीजिए करके हम सब मांगेंगे। हम सब थोड़े समय परमेश्वर के सम्मुख में सर झुकाकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए परमेश्वर आपकी दीनता, आपकी सहनशीलता मुझ में दीजिए, आपका प्रेम मुझ में दीजिए। दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है, दूसरों के साथ हमें किस तरह से बातें करना है, दूसरों के साथ हमें किस तरह से बिहेव करना है, ये सब हमें सिखाइए, ये सब मुझे सिखाइए परमेश्वर। ऐसा करके परमेश्वर से मांगिए, मांगिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड। मांगने वाला हर एक को परमेश्वर देने वाला परमेश्वर, किसी को भी खाली हाथ न छोड़ने वाला परमेश्वर। जो भी मांगता है, जो भी मांगता है, पूरे दिल से जो भी मांगता है, उसे भरपूरता से भरने वाला परमेश्वर। अधिक समय में ये बड़प्पन जो है हमें ही नहीं पता चलता कि मैं बड़प्पन से बातें कर रहा हूँ क्या, या दीनता के साथ ही हूँ क्या, या कुछ ऐसा कुछ बोल रहा हूँ जो मुझे नहीं बोलना चाहिए क्या। ये हमें खुद अपने आप को पता नहीं लगता, फिर भी हम लोग बोल देते हैं। तो आज आप मांगिए, परमेश्वर मुझे एक दूसरे से बातें करने की ये जो कार्य है मुझे दीजिए, मुझे ये सहनशीलता मुझे दीजिए, ये धीरज मुझे दीजिए। आप ही न्यायी है, वो जो धीरज के साथ ठहरने के लिए मुझ में ज्ञान दीजिए करके परमेश्वर से मांगिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मेरे साथ ही रहना मेरे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। मेरे साथ ही रहना मेरे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अंधकार के समय में ज्योति बने रहो, मृत्यु के समय में जीवन बने रहो। अंधकार के समय में ज्योति बने रहो, मृत्यु के समय में जीवन बने रहो। मेरे साथ ही रहना मेरे, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा।
साथी रहना मेरे यीशु, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। आंसुओं के समय में माँ बने रहो, कर्ज के समय में पिता बने रहो। आंसुओं के समय में माँ बने रहो, कर्ज के समय में पिता बने रहो। मेरे साथी रहना मेरे यीशु, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा। मेरे साथी रहना मेरे यीशु, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। बीमारी के समय में वैद्य बने रहो, दर्द के समय में सहारा बने रहो। बीमारी के समय में वैद्य बने रहो, दर्द के समय में सहारा बने रहो। मेरे साथी रहना मेरे यीशु, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा। मेरे साथी रहना मेरे यीशु, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हम सब परमेश्वर की ओर देखकर कहेंगे, परमेश्वर बीमारी के समय में मेरा वैद्य बने रहो, या दर्द के समय में मेरा सहारा बनो। बीमारी के समय में अनेक लोग बीमारी के साथ, वेदना के साथ, अनेक लोग इस वेदना इन दिनों में बीमारियों के साथ है। हम सब जन देखकर कहेंगे, पिता इस बीमारी के दिनों में मेरा वैद्य बने रहो, मेरा वैद्य बनो पिता। मेरे लिए और कोई नहीं, मेरा दर्द बांटने के लिए कोई और नहीं, या मेरा सहारा देने के लिए मेरे साथ कोई नहीं। आप मेरे साथ बने रहो परमेश्वर, आप मेरे साथ बने रहो। मुझे सहारा दीजिए, मुझे सहारा दीजिए, मुझे बलवान कीजिए। बलहीनता में हूँ, मुझे बलवान बनाइए। जंगली सांड का सा बल मेरे अंदर दीजिए। ये सारे बीमारियों को हटाकर, इस बीमारियों के दिनों में मेरे साथ रहकर, मुझे छुटकारा कर कर, अपने लहू से मुझे शुद्ध कर कर, मुझे फिर से खड़ा कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हम सब सर झुकाकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद पिता, इस अच्छे समय के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। अच्छे वचनों को ध्यान करने के लिए आपने मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते पिता।
परमेश्वर आप अकेले ही न्यायी हो पिता। न्याय के समय में हम किसी और का दरवाज़ा, किसी और का द्वार खटखटाते न हुए आपके द्वार पर हम लोग आकर खड़े होने के लिए हमको मदद दीजिए। परमेश्वर आपकी दीनता हमें दीजिए। इस संसारी का घमंड, संसार का घमंड, ये सब कुछ हमारे अंदर से निकाल दीजिए। एक सहनशीलता की आत्मा, एक प्रेम की आत्मा हमारे अंदर दीजिए परमेश्वर। और विशेष रीति से बीमारी के साथ, वेदनाओं के साथ, दर्द के साथ परमेश्वर इस समय में देखने वाले हर एक के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हर एक के लिए आपका हाथ, चंगाई करने वाली हाथ हर एक के ऊपर उतर कर परमेश्वर आप चंगा करने के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सब जन मांगिए, परमेश्वर मुझे चंगा कीजिए, परमेश्वर मुझे चंगा कीजिए। आपकी चंगाई करने की हाथ मेरे ऊपर रखिए करके मांगिए। मांगने वाले हर एक को भरने वाला परमेश्वर, आज इस आराधना के समय में जो भी लोग परमेश्वर आपसे एक चंगाई को मांग रहे परमेश्वर, एक बल को मांग रहे परमेश्वर, उनको आप भरने के लिए हम लोग प्रार्थना करते परमेश्वर। आपने क्रूस पर अपना लहू इन्हीं लोगों के लिए बहाया है पिता, हमारे लिए बहाया है परमेश्वर। हमारे दर्द के लिए, हमारी वेदनाओं के लिए, हमारी बीमारियों के लिए ही परमेश्वर। मांगने वाले हर एक को, बीमारियों के साथ रहने वाले हर एक को परमेश्वर आप छुटकारा देने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आप ऐसे कर रहे हैं करके हम लोग विश्वास के साथ, एक विश्वास के साथ हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। सारी आदर महिमा केवल आपको देखकर हम लोग प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से सुनो प्रभु का स्वर्गीय पिता, आमेन। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமது மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। இந்த அருமையான காலை வேளையை கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். सच्चे सुबह के समय परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। இயேசுவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு வாழ்த்துரை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். यीशु के नाम से आप सभी को हम अभिवादन करते हैं। இந்த வேலைக்காக நான் உங்களை இந்த வேதத்தின் மூலமாக உங்களை அழைக்கிறேன். इस वचन के द्वारा हम आपको इस समय बुलाते हैं। நீங்கள் கவனமாக கர்த்தருடைய வார்த்தை கேட்கும்படியாக आप सब ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनने के உங்களை लिए அன்புடன் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். हम प्रेम से विनती करते हैं। கர்த்தர் நம்மளை கடந்த நாட்கள் முழுவதும் பாதுகாத்தார். परमेश्वर हमें पिछले पूरा दिन संभाला है। இந்த வாரத்தில் நம்மளை கொண்டு வந்திருக்கிறார். इस हफ्ते में हमें लेकर आए हैं। எத்தனையோ கொள்ளை நோய்கள் இந்த தேசத்துல பரவி கொண்டு இருக்கிறது. इस देश में कई सारी महामारियां जो फैल रही है। எவ்வளவு பிரச்சனைகள், வறுமைகள் தேசத்துல இந்த நாட்கள் இருக்கிறது. कई सारे समस्याएं जो सब कुछ इस देश में है। ஆனால் கர்த்தரோ நம்மளை தாங்கிக் கொண்டு வருகிறார். पर परमेश्वर हमें संभाल कर आ रहा है। அற்புதமாக நம்மளை அவர் நடத்துகிறார். अद्भुत रीति से चला रहा है। அதை எண்ணி தேவன் நம்ம நன்றி செலுத்த வேண்டும். उसे गिनकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करना நீங்க है। வசனத்தை சந்தோஷமா கேளுங்க. आप वचन को खुशी से सुनिए। நிச்சயமாகவே निश्चय से உங்கள் துக்கம் எல்லாம் சந்தோஷமாக மாறும். आपका दुख सब खुशी में बदलेगा। நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தையில கடந்து செல்லுவோமா? हम परमेश्वर के वचन में इस तरफ जाएंगे। சங்கீதம் भजन संहिता 34 அதிகாரம் 34 இரண்டாவது வசனம். दूसरा वचन। நான் முதல்ல தமிழ்ல படிக்கிறேன், पहले हम तमिल में पढ़ेंगे, பிற்பாடு இந்தியில படிக்கலாம். फिर आप हिंदी में पढ़िए। கர்த்தருக்குள் என் ஆத்துமா மேன்மை பாராட்டும், சிறுமைப்பட்டவர்கள் அதை கேட்டு மகிழ்வார்கள். मैं यहोवा पर गमन करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। தாவீது சொல்லுகிறார், यहाँ दाऊद कहता है, கர்த்தருக்குள் என் ஆத்துமா மேன்மை பாராட்டும், यहोवा के अंदर मेरी आत्मा गमन करेगा, சிறுமைப்பட்டவர்கள் அதை கேட்டு மகிழ்வார்கள். और नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। இந்த சங்கீதமானது ये जो भजन संहिता है, அபிமெலேக்கால் துரத்திவிடப்படுகையில் பாடின சங்கீதம் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. अबीमेलेक के सामने जो ऐसे ये भजन संहिता कहा गया है। அது அபிமெலேக்கு ये जो अबीमेलेक थे, சோத்திரம் தாவீதை துரத்தும் பொழுது दाऊद को जो निकालते समय தாவீது ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறார். दाऊद भाग रहा था। சோத்திரம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிற சமயத்துல भागते समय पर இந்த சங்கீதத்தை தாவீது பாடிக்கொண்டே போய் கொண்டே இருக்கிறார். ये जो भजन संहिता है दाऊद गा कर जाते हैं। அங்க சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, यहाँ कहा गया है, கர்த்தருக்குள் என் ஆத்துமா மேன்மை பாராட்டும், यहोवा के अंदर मेरी आत्मा गमन करेगा, சிறுமைப்பட்டவர் அதை கேட்டு மகிழ்வார்கள். नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। நீங்களும் நானும் आप और हम எவ்வளவுக்கு அதிகமாக தேவனை துதிக்கிறோமோ, कितना अधिक हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, எவ்வளவுக்கு அதிகமாக நம் தேவனை ஆராதிக்கிறோமோ,
कितना अधिक हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, அவ்வளவுக்கு அதிகமாக उतना ही अधिक சிறுமைப்பட்டவர்கள் மகிழ்வார்கள் नम्र लोग जो आनंदित होंगे, என்று தாவீது சொல்லுகிறார். ऐसे दाऊद कहता है। அங்க 34ஆம் சங்கீதம் ये जो 34 भजन அந்த संहिता ஒன்னாவது சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. पहला वचन में कहा गया கர்த்தரை है, நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்திரிப்பேன், मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा அவர் करूंगा, துதி எப்பொழுதும் என் வாயில் இருக்கும். उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख में होती இவ்வாறாக है। தாவீது அந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும் கூட, इस ऐसे जो दाऊद है उस समय पर भी, அந்த துரத்துகிற நேரத்திலும் கூட वो भागते रहते समय पर அவன் भी சொல்லுகிறான், वो कहता நான் है, கர்த்தரை எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்திரிப்பேன். मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा அவன் करूंगा। இப்படியாக சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிற சமயங்களில ऐसे वो बोलते रहते समय எத்தனை சிறுமைப்பட்ட ஜனங்கள் இதை கேட்டு இருப்பார்கள். कई सारे नम्र लोग इसे सुने रहेंगे, எத்தனை பேரோ அவருடைய சோதர வார்த்தைகளை கேட்டு இருப்பார்கள். कई सारे लोग इस शब्द को सुने रहेंगे, அப்ப அவர்கள் நினைச்சார்கள் மகிழ்வான்னு சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. तब ये लोग आनंदित होंगे करके कहा गया நீங்க है। இந்த உலகத்துல आप ये संसार में நம்மை சுற்றிலுமாக हमारे सब चारों तरफ சிறுமைப்பட்ட ஜனங்கள் அநேகர் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். जो नम्र लोग अधिक लोग रहते हैं, சோதரம் ஏழைகள் தான் என்று நம்ம நினைத்து விடக் கூடாது. गरीब ही है करके हम नहीं सोचना चाहिए। சிறுமைப்பட்டவன் என்று சொன்னால் जो गरीब ऐसे कहा जाए பெரிய तो, பணக்காரர்கள் கூட இருக்கிறார்கள். और जो अमीर लोग भी है, பாருங்க, வயதான காலத்துல जो बहुत ही एज के समय சோதரம் पर தங்களுடைய பிள்ளைகளால அவர்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டு अपने बच्चों से थोड़ा टुकरा कर அவர்கள் சிறுமைப்பட்டு அவர்கள் காணப்படுகிறார்கள். ये लोग नम्र बनकर रहते हैं। அவங்களுக்கு கோடிக்கணக்கான பணங்கள் இருக்கலாம், उनके पास कई गुना पैसे रहेंगे, சோதரம் அதிகமான சொத்துகள் இருக்கலாம். कई सारे धन दौलत है तो भी, ஆனால் எவ்வளவு சொத்துக்கள் இருந்தாலும், कई सारे धन दौलत रहते हुए, எவ்வளவு பணங்கள் இருந்தாலும், कई सारे पैसे रहते हुए பாருங்க, அதுல அந்த பெற்றோருக்கு உரிமைகள் இல்லாதபடிக்கு वो जो पेरेंट्स को जो राइट्स नहीं रहता है, சோதரம் இன்றைக்கு நீங்க பாருங்க, அநேக சோத விதமான பெற்றோர்கள் अनेक जो पेरेंट्स है சிறுமைப்பட நம்ம கண்களை பார்க்க முடிகிறது. जो ऐसे रहते हैं, हम अपने आंखों से देख सकते हैं, அவர்கள் எல்லா வசதிகள் இருக்கிறது, उनके पास सब कुछ है, ஆனால் மனதுல வேதனை, पर मन में दुख, மனதுல ஒரு சோதரம் பிரச்சனைகள், मन के अंदर एक समस्या, நீங்க பிள்ளைகளால் நிம்மதி இல்லாத வாழ்க்கை, बच्चों से एक चैन का जीवन नहीं நீங்க है, சிறுமைப்பட்டவர்கள் காணப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள். वैसे वे लोग रहते हैं। இப்படியாக ऐसे ही இப்படி பல பேர் இந்த உலகத்துல சிறுமைப்பட்டு காணப்படுகிறார்கள். ऐसे कई सारे लोग जो इस संसार में नम्र बनकर அவைகளை हैं, சொல்லிக் கொண்டே நம்ம போய் கொண்டு இருக்கலாம். वैसे हम कह कर ही जा सकते இந்த हैं। இப்ப இந்த காலகட்டத்துல इस समय இந்த पर கொரோனா வியாதியினால ये कोरोना की बीमारी எத்தனை से சிறுமியான ஜனங்கள் இங்கே காணப்படுகிறார்கள். कई सारे जैसे नम्र लोग हम देख सकते हैं, எத்தனை பேர் ஒருவேளை சாப்பாட்டு கூட வழி இல்லாமல் வறு மேல வாடிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். एक समय की प्रॉपर खाना नहीं, वैसे कई सारे लोग को हम देख सकते நாம் हैं, பரிதாபமாக ஜனங்களுக்கு இருக்கிறார்கள். बहुत ही मिसरेबल कंडीशन में है। நாம அவர்களுக்காக हम उनके लिए சோதரம் தேவனை நம்ம துதிக்கும் பொழுது, परमेश्वर को हम धन्यवाद करते தேவனை समय, ஆராதிக்கும் பொழுது परमेश्वर की आराधना करते அவருடைய समय வாழ்க்கை மாறி उनका जीवन बदल कर அவருடைய வாழ்க்கையில उनके जीवन ஒரு में சந்தோஷத்தையும் एक आनंद ஒரு சமாதானத்தையும் एक शांति को ஆண்டவர் கட்டளையிடுகிறவர். परमेश्वर आज्ञा देंगे। அதைதான் தாவீது சொல்லுகிறார். वही दाऊद कहता என்ன है, சொல்லுகிறார்? क्या कहता है? சிறுமைப்பட்டவர்கள் அதை கேட்டு மகிழ்வார்கள். नम्र लोग यह सुनकर आनंदित எதை होंगे। கேட்டு மகிழ்வார்கள்? किसे सुनकर நாம் आनंदित தேவனை होंगे? ஆராதிக்கும் பொழுது, हम परमेश्वर की आराधना करते கர்த்தருடைய समय, வார்த்தை அவர்களுக்கு சொல்லும் பொழுது, परमेश्वर की जो वचन को बोलते समय, ஆண்டவரை குறித்து அவர்களுக்கு நாம சொல்லும் பொழுது, परमेश्वर के बारे में उन्हें बोलते அவருடைய समय இருதயமானது उनका जो हृदय है சந்தோஷத்தால மகிழ்வுபடும் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. बहुत ही आनंदित होंगे करके कहा சரி, गया இன்னைக்கு है। சிறுமைப்பட்ட ஜனங்களை जो नम्र लोगों को ஆண்டவர் விடுவிக்கிற தேவன். छुटकारा करने वाला அப்ப परमेश्वर है। சிறுமைப்பட்ட வேதத்திலே வாசிக்கும் பொழுது, नम्र लोगों के बारे में इस भजन में पढ़ते समय வேதத்தில் சிறுமைப்பட்டவர்கள் காணப்பட்டார்கள். शास्त्र में जो नम्र लोग थे, அப்படிப்பட்டதான காரியங்களை குறித்து वैसे कार्यों के बारे में கர்த்தர் நம்மோடு இருந்து பேசுவாராக. परमेश्वर हमसे बातें நீங்க करेंगे। யோபுவை பார்க்கும் பொழுது, हम अय्यूब को देखते समय, யோபு 29ஆம் அதிகாரம் अय्यूब 29 में அதுல 6ஆம் வசனம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. 6वां वचन में कहा गया என் है, பாதங்களை நெய்யினால் கழுவினேன், अपने पगों को मलाई से धोता हूँ, கன்மேலிலிருந்து எனக்காக எண்ணெய் நதி போல ஓடி வந்தது. चट्टान से तेल की धाराएं बहती रहती है। அந்த செல்வ நாட்களின் சீர் இப்போது இருந்தால் நலமாயிருக்கும். वैसा जो जीवन अभी रहा तो अच्छा இந்த रहेगा। வசனத்தை கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள். इस वचन को थोड़ा देखिए। யோபு ஒரு சோத்திரம் வேதனை நிறைந்த ஒரு சூழ்நிலையில் காணப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறான். अय्यूब जो एक वेदना की स्थिति में है, எல்லாவற்றையும் ஒரு இழக்கிற ஒரு சூழ்நிலை அவன் காணப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறான். सब कुछ खोने की स्थिति पर है। அவன் சொல்லுகிறான், वो कहता है, என் பாதங்களை
நெய்யினாலே நான் கழுவினேன். मेरे पगों को मैं मलाई से धोता हूँ। அவன் எவ்வளவு சீரும் சிறப்புமாக வாழ்ந்தவன், वो बहुत ही अच्छी रीति से जिया हुआ है, எவ்வளவு ஆசீர்வாதங்களால வாழ்ந்தவன். कई सारे आशीषों से वो जिया हुआ அங்க है। சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, वहाँ कहा गया है, என் பாதங்களை நெய்யினாலே நான் கழுவினேன், मेरे जो पैरों को मैं मलाई से धोता हूँ। கண்மெலிந்து எனக்காக எண்ணெய் நதி போல ஓடி வந்தது. चट्टान से जो तेल की धाराएं बहती रहती அந்த है, அந்த செல்வ நாட்களின் சிரிப்பொழி நலமா இருக்கும் என்று சொல்லுகிறார். वैसे का जो जीवन है रहा तो कितना अच्छा होगा करके कहा गया है। பக்தனாகிய யோபுடைய வாழ்க்கை जो अय्यूब का जीवन है, சோதனைங்க பார்க்கும்போது देखते समय ஒரு காலத்துல சீரும் சிறப்பாய் வாழ்ந்தவர். एक समय पर बहुत ही अच्छा रीति से थे, அவருடைய கால்களை நெய்யினால கழுவினார்களாம். अपने उनके पैरों को मलाई से धोते थे। பாரு எவ்வளவு ஒரு ஆசீர்வாதம் காணப்பட்டது. कितना आशीष था। நமக்கு இன்றைக்கு தண்ணீரை கிடைக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கிறது. हमें इस समय पानी मिलना ही बहुत मुश्किल நம்மளோட है। மகாராஷ்டிரல மழை பெய்யலாம் தண்ணீரை கிடைக்காது. हमारे महाराष्ट्र में बारिश नहीं हुआ तो पानी नहीं मिलेगा, அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருக்கிறது. वैसा स्थिति पर है। ஆனால் யோபு पर अय्यूब அவன் காலை अपने पैरों को நெய்யினாலே கழுவினான்னு சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. मलाई से धोता था करके कहा गया है। யோபுக்காக अय्यूब के लिए அதாவது எண்ணெயானது जो तेल है நதி போல ஓடி வந்துச்சாம். धाराएं की तरह बहती அவருடைய थी। வாழ்க்கை கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும். उनके जीवन को हम सोच कर देखना எவ்வளவு है, செழுமையாக வாழ்ந்தவன், कितना अच्छे से रहने वाले எவ்வளவு थे, ஆசீர்வாதமாக வாழ்ந்தவன், कितने आशीष के तौर पर थे, எவ்வளவு சோதராம செல்வ செழிப்புமாக இருந்தவன். कितने श्रीमत और अच्छी रीति से थे। எண்ணெய் வந்து நதி போல ஓடி வந்துச்சாம். तेल जो धारा के समान बहती थी, எல்லா சீர் அவனுடைய வாழ்க்கையில காணப்பட்டது. सभी तरह की चीजें उनके जीवन में था। ஆனா யோபு பாருங்க, पर अय्यूब देखो, எல்லாவற்றையும் இழந்தது மாத்திரமல்ல, सब कुछ खोकर அவருடைய வாழ்க்கையில अपने उनके जीवन में வியாதி காணப்பட்டு बीमारियां आकर அவன் சிறுமை அடைந்ததை நம்ம பார்க்க वो முடிகிறது. बहुत ही नम्र हो गया करके हम देखते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। அவருடைய வாழ்க்கையில வியாதி காணப்பட்டது. उसके जीवन में बीमारियां थी। ஒரு காலத்துல சீருமா வாழ்ந்தவன், एक समय पर बहुत ही अच्छे से थे, ஆசீர்வாதமா வாழ்ந்தவன். आशीष के तौर पर थे। ஆனால் வியாதி வந்த பொழுது जब बीमारियां आई, அவனை குறித்து வேதவசனம் சொல்லுகிறது. उसके बारे में शास्त्र में कहा गया है, யோபு சொல்லுகிறார், अय्यूब कहता है, யோபு 16:20 சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, अय्यूब के 16:20 में कहा गया என் है, சிநேகிதர் मेरे जो मित्र है என்னை பரியாசம் பண்ணுகிறார்கள். मेरे सामने मुझे ये करते हैं, என் சிநேகிதர் என்னை பரியாசம் பண்ணுகிறார்கள். जो मेरे जो मित्र है मुझे इसे चिढ़ाने के तौर पर करते அவனுடைய हैं। வாழ்க்கை எவ்வளவு மாறினது பாருங்க. उनका जीवन कैसे बदला, அவன் எப்படியாக இருந்தவன், वो कैसे थे, அவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனா வாழ்ந்தவன். वो बहुत ही आशीष के तौर पर ஆனால் थे, வியாதியினால, पर बीमारी की वजह से, அவன் இழப்பினால, उनके सब कुछ खोने की அவனோடு वजह கூட से, இருந்தவர்கள், उनके साथ रहने அவனுடைய वाले, ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் उनके फ्रेंड्स उन्हें அவனை பரியாசம் उन பண்ணினார்கள். पर हंसते थे। எவ்வளவு ஒரு சிரம பாருங்க. कि कैसे एक समय था அவன்கிட்ட இருக்கும்போது எல்லாரும் வந்தார்கள். जब उनके पास सब कुछ था, सभी आए அவன் थे। சுகமாரி எல்லாரும் வந்தார்கள். जब वो सुख थे तभी सब कुछ सब लोग எல்லாம் आए थे, எல்லாரும் விசாரித்தார்கள். सब पूछताछ करते थे। ஆனால் இப்பொழுது पर अभी அவருடைய சிநேகிதர் पर उनके जो फ्रेंड्स हैं அவனை பரியாசம் उस पर பண்ணுகிறார்கள். हंसते हैं। உங்களுடைய வாழ்க்கையில आपके जीवन में ஒருவேளை अगर ऐसा है तो இப்படிப்பட்டதான ஒரு வழியினை கடந்து போய் கொண்டு இருக்கலாம். ऐसे मार्ग में आप गुजरते हो तो ஒரு சிறுமையான வழி நீங்க கடந்து போய் கொண்டு இருக்கலாம். ऐसे नम्र की जो जीवन में आप जाते रहते என்னுடைய हो तो வாழ்க்கை சிறுமையாக காணப்படுகிறது. मेरा जीवन ऐसा है, ஒரு காலத்து எவ்வளவு நான் வாழ்ந்தவன், एक समय में कैसा था, எல்லாம் எனக்கு காணப்பட்டது. सब कुछ था, இன்றைக்கு நான் சுகத்தை இழந்திருக்கிறேன், आज मैं सुख कर खो गया हूँ, என்னுடைய சொத்தை நான் இழந்திருக்கிறேன், मेरा सब धन दौलत खो कर என்னுடைய रहता हूँ, குடும்பத்தை நான் இழந்திருக்கிறேன். मेरे परिवार को खो दिया। இந்த சிறுமைப்பட்டு காணப்படுகிறீர்களா? ऐसे आप है तो தாவீதை யோபுவை போல நீங்க சிறுமையான நாட்கள்ல கடந்து போய் கொண்டு இருக்கிறீர்களா? अय्यूब के जैसे आप नम्र दिनों में जा रहे हैं அந்த तो ஆண்டவர் परमेश्वर இந்த நாட்களில் इन दिनों में உங்க சிறுமை எல்லாவற்றை அவர் மாற்றுகிற தேவன். कि जो इसको सब बदलेगा। இதோட கொடுமை என்ன தெரியுமா? इससे बहुत ही भयंकर चीज क्या யோபு है, வந்து अय्यूब जो है, சின்ன பிள்ளைகள் கூட பரியாசம் பண்ணினார்களாம். जो छोटे बच्चे भी उन पर हंसते அந்த थे। யோபு சொல்லுகிறான், अय्यूब कहता है, இப்பொழுது என்னிலும் आप मुझसे भी இள வயதுள்ளவர்கள் जो छोटे हैं என்னை பரியாசம் பண்ணுகிறார்கள். मुझ पर हंसते हैं। யோபின் சிறுமையை பார்த்து जो अय्यूब के जो नम्र को சின்ன देखकर பிள்ளையோட பரியாசம் பண்ணாங்களாம். छोटे बच्चे भी उस पर हंसते யோபு हैं। எல்லாவற்றையும் இழந்த நிலைமை, जो अय्यूब सब कुछ खोकर थे, வியாதிப்பட்டு காணப்படுகிறான். बीमार थे, அவன் சொல்லுகிறான், वो कहता है, என் நாட்கள் நம்பிக்கை இல்லாமல் முடிந்து போயிற்று. मेरा जो दिन है भरोसा के बिना चला அவன் गया எதிர்கால है, வாழ்க்கை இல்லை, मेरा जो फ्यूचर नहीं है, எதிர்கால குறித்து நம்மளுக்கு நம்பிக்கை இல்லை. भविष्य
भविष्य के बारे में कुछ भरोसा ஒரு नहीं है, நம்பிக்கையற்ற நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறான். जो अविश्वास में है, ஏன்? क्यों? அவனுக்குள்ள சிறுமை, उसके अंदर नम्रता, அவனுக்குள்ளாக ஒரு சிறுமை காணப்பட்டது. उसके अंदर एक दीनता था। அவன் சொல்லுகிறான், वो कहता है, ஒரு மரத்தை குறித்தாவது நம்பிக்கை உண்டு. एक पेड़ के ऊपर तो एक विश्वास रहता है, அது வெட்டி போட்டாலும் उसको काटने पर அது भी திரும்ப முளைக்கும். वो वापस आता है, ஆனால் पर அவன் வாழ்க்கை நம்பிக்கை இல்லை. उसका जो जीवन ऐसे भरोसा அவன் नहीं வாழ்க்கை था, நம்பிக்கை இல்லாமல் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது. भरोसा के बिना उनका जीवन जा रहा இன்றைக்கு था। தேவனுடைய பிள்ளைகளே, आज हम परमेश्वर के உங்களுடைய बच्चे, வாழ்க்கை நம்பிக்கை இல்லாமல் காணப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறீர்களா? आपका जीवन भरोसे के बिना है तो எனக்கு இன்றைக்கு எதிர்காலம் இல்லை. मुझे एक फ्यूचर नहीं है। இந்த லாக்டவுன் காலங்களிலே इस लॉकडाउन के समय என்னுடைய पर வாழ்க்கை சிறுமையாக காணப்படுகிறது. मेरा जो जीवन बहुत ही दीनता में இருக்கிற है, எல்லாவற்றையும் இழந்து கொண்டு இருக்கிறேன். सब कुछ मैं खोकर बैठा எல்லாம் हूँ, என்னுடைய கையை நழுவி போய் விட்டது सब कुछ मेरे हाथ से निकल என்று गए, கலங்கி நின்று கொண்டு இருக்கிறீர்களா? ऐसे आप व्याकुल हो क्या? யோபுவை போல் நீங்க ஒருவேளை புலம்பிக் கொண்டு இருக்கிறீங்களா? अयुब के जैसे आप गिड़गिड़ा रहे हो क्या? யோபுவை போல் நீங்க சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிறீர்களா? अयुब के जैसे आप बोलते हो உங்களை क्या? பரியாசம் பண்ணி கொண்டு आप पर இருக்கிறார்களா? हंसते हैं क्या? நீங்க கலங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. आप दुखी मत हो, ஆண்டவர் உங்களுடைய சிறுமையை மாற்ற வல்லமையுள்ள தேவன். परमेश्वर அவர் आपकी दीनता को बदलने वाला அவன் है। நம்பிக்கை இல்லாத வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தான். जो भरोसे के बिना जो जीवन जी रहे அவன் थे, கொடிய புண்களால் அவன் அவதிப்பட்டு கொண்டு இருந்தான். बहुत ही जो बीमारी से वो पीड़ित थे, பாருங்கள், எப்பொழுதும் சொரிந்து கொண்டே இருப்பான். कभी देखो ऐसे आप अपने ऊपर ये करते रहते சோதரம் थे। அவனுடைய வாழ்க்கை ஒரு சோதரம் சிறுமையாக காணப்பட்டது. उसका जीवन बहुत ही दीनता में அதோட था, மிக மிக கொடுமை, बहुत ही वो कठोर था। மிக மிக பயங்கர என்ன தெரியுமா? बहुत ही कठोर क्या था? அவருடைய மனைவி சொல்லுதா, उनकी पत्नी நீ தேவனை தூஷித்து परमेश्वर को दूषित करके ஜீவனை விடும், अपने जान को दे இன்னும் दे, உத்தமத்து உறுதியாக இருக்கிறீரோ? और क्यों उत्तमता में आप स्थिर खड़े தேவனை हो, தூஷித்து परमेश्वर को स्थिर दूषित करके ஜீவனை விடும் என்று சொல்லுகிறார். जीवन को छोड़ दो அவருடைய करके, சிறுமையை பார்த்து उसकी दीनता को देखकर யோபின் மனைவி கூட अयुब की जो पत्नी அவனுக்கு थी உதவிக்கு வரவில்லை. उसको साथ नहीं दी, அவனுக்கு ஆறுதல் சொல்வதற்கு கூட போகவில்லை. उसको तसल्ली देने भी नहीं அவனை गए, தைரியப்படுத்த கூட முடியவில்லை. धैर्य देने भी नहीं गए। அவனை சொல்லுகிறான், उससे कहती நீ है தேவனை தூஷி, तू यीशु को दूषित நீ कर, நீ ஜீவனை விடு என்று तेरी சொல்லுகிறான். जान को दे दे। அதுக்கு அவன் சொல்லுகிறான், तो वो कहता நீ है பைத்தியக்காரியை போல பேசுகிறாய். आप पागलपन की जैसे क्यों बातें करते தேவன் हो? கையில परमेश्वर के हाथ में நன்மை பெற்ற நாம் भलाई पाया हुआ தீமை मैं, பெற வேண்டாமோ என்றான். जो मैं बुराई को नहीं पा सकता हूँ பாரு, क्या? யோபு இவை எல்லாவற்றிலும் ये सब में अयुब தன் வாய் உதல பாவம் செய்யணும் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. में पाप नहीं ऐसे कहा गया है। பாருங்க, அவனுடைய மனைவி கூட उसकी जो पत्नी भी है, அவருடைய சிறுமையை பார்த்து उसकी दीनता के நீ कारण ஜீவனை விடும் என்று சொல்லுகிறார். तो जान को दे दे करके कहती है। ஹalleluya, हालेलुया। ஹalleluya. ஹalleluya. அவ்வளவு ஒரு சிறுமையான வாழ்க்கை वैसा एक दीनता का जीवन யோபுடைய வாழ்க்கையில கடந்து வந்தது. अयुब के जीवन में आया था, ஆனால் ஒரு நாள் வந்தது. पर एक दिन आया। யோபு 42:10 சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. अयुब 42:10 में कहा யோபு गया தன் है, சிநேகிதருக்காக வேண்டுதல் செய்த பொழுது अयुब अपने मित्रों के लिए विनती करते அவன் समय சிறுமையை கர்த்தர் மாற்றினார். उसका जो कार्य सब कार्य को அவனுடைய यीशु ने எல்லாவித बदला, சிறுமை கர்த்தர் மாற்றினார். उसका जो दीनता सब बदला। யோபுக்கு முன்னிருந்த எல்லாவற்றையும் பார்க்கிலும் अयुब के पास जो पहले कुछ सब कुछ था उससे भी अधिक இரண்டு தனையாக दुगना கர்த்தர் அவனுக்கு தந்தருளினார். परमेश्वर ने उन्हें दिया। ஆமென், आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। ஒரு சிறுமையின் பாதையில கடந்து போய் கொண்டே இருக்கிறீர்களா? एक दीनता के जीवन में जा रहे हो ஒரு क्या? வேதனையினுடையதான சூழ்நிலை போய் கொண்டே एक இருக்கிறீர்களா? वेदना की स्थिति में जा रहे हो இனி क्या? எனக்கு வாழ்க்கையே இல்லை, मुझे इसके बाद जीवन नहीं है, எனக்கு என்னுடைய வாழ்க்கை என்ன போய் விட்டதுன்னு சொல்லி கதறி காயப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறீர்களா? मेरा जीवन ऐसे ही गया करके आप हो क्या? உங்களை இன்னும் காயப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறார்களா? और आपको दुखी देते हैं क्या? கவலைப்படாதங்க. आप चिंता मत करो। யோபின் சிறுமையை மாற்றினவர், अयुब के जो दीनता को परमेश्वर ने बदला, யோபின் சிறுமையை மாற்றினவர் अयुब की दीनता को बदला, இன்றைக்கும் आज भी உங்களுடைய வாழ்க்கையின் आपके जीवन में சிறுமையை மாற்றி दीनता को बदल ஆண்டவர் कर ஆசீர்வதிக்கிற வல்லமை கொடுக்கிற தேவன். परमेश्वर आशीष करके आपको அவர் सामर्थ्य உங்களுக்கு देगा, வாழ்வை கொடுக்கிறவர். आपको वो जीवन देगा, அவர் உங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கையை கொடுக்கிறவர். आपको वो जीवन देता அவர் है, உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறவர். आपको वो आशीष करता है। சிறுமையை பார்த்து ஒருவேளை குடும்பங்கள் தூரம் போய் இருக்கலாம். दीनता को देखकर परिवार दूर गया होगा, குடும்ப சிறுமையை பார்த்து ஒரு எல்லாரும் உங்களை தூரம் போய் கொண்டு இருக்கலாம். दीनता को देखकर सब लोग आपसे दूर गए ஆனால் होंगे, ஆண்டவர் पर परमेश्वर யோபுவை ஆசீர்வதித்தது போல, अयुब को आशीष किया, யோபு சிறுமையை மாற்றினது போல अयुब की दीनता को बदला। இந்த வாரத்துல इस हफ्ते में உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற आपके जीवन के எல்லா சிறுமையை மாற்றி हर एक दीनता को बदल ஒரு कर ஆசீர்வாதத்தை, एक आशीष को, ஒரு நன்மையை, एक भलाई को ஒரு சோதர ஆண்டவர் கொடுக்க அவர் விரும்புகிறார். वो देना वो चाहता है। ஹalleluya, हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। யோபுவை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். अयुब को
परमेश्वर ने आशीष முன்னில் किया, எல்லாவற்றையும் பார்க்கிறோம். पहले के सब कुछ से அவனுக்கு ரெண்டு விதமான கர்த்தர் அவனுக்கு அற்புதத்தை செய்தார். 2 गुना अद्भुत कार्य किए। இன்றைக்கும் आज भी நம்முடைய ஆண்டவர் ஜீவன் உள்ளவர். हमारा परमेश्वर जीवित இந்த है। வேதத்தை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறீர்கள் அல்லவா? जो वचन को आप सुन रहे இந்த हो, வசனத்தின் மூலமாக वचन के द्वारा, கர்த்தருடைய வார்த்தையின் மூலமாக परमेश्वर के உங்க वचन के द्वारा வாழ்க்கையை கர்த்தர் மாற்றுவார். आपके जीवन को परमेश्वर வறண்ட बदलेगा। வாழ்க்கையெல்லாம் செழிப்பாக மாறும். आपका जो जीवन अच्छी रीति से உங்க बदलेगा, சிறுமைகள் எல்லாம் மாறும். आपका दीनतापन बदलेगा, நீங்க கலங்க வேண்டிய அவசியம் आप இல்லை. डरने की जरूरत नहीं है। ஹalleluya. हालेलुया। சந்தோஷம் அல்லேலூயா சொல்லுங்க பாப்போம். खुशी से हालेलुया बोलेंगे। ஹalleluya. हालेलुया। நம்முடைய ஆண்டவர் நல்லவர். हमारा परमेश्वर अच्छा है। இரண்டாவதாக பார்க்கும் பொழுது दूसरा हम देखते हैं, தாவீது சொல்லுகிறார், दाऊद कहता है, சங்கீதம் भजन संहिता 9ஆம் அதிகாரம் 9 9 சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. 9 में कहा गया है, சிறுமைப்பட்டவனுக்கு கர்த்தர் அடைக்கலமானவர். परमेश्वर जो उनको शरणागत है, நெருக்கப்படுகிற காலங்களில் संकट के समय पर அவரே தஞ்சமானவர். वही ऊंचा गढ़ है। அவங்க தாவீது சொல்லுகிறார், यहाँ दाऊद कहता है, சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு அவர் அடைக்கலமானவர், पिसे हुए लोगों को ऊंचा गढ़ है, அவரே தஞ்சமானவர். वही ऊंचा गढ़ है। சிறுமைப்பட்ட பிள்ளைகளை जो पिसे हुए लोग हैं, யாரும் பாதுகாக்க மாட்டார்கள். कोई भी उनकी रक्षा नहीं करता है। சிறுமைப்பட்டவருடைய வாழ்க்கையை दीनता के जो लोग के जीवन யாரும் में ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். कोई अपनाता नहीं है, அவர்களை வீட்டில கூட அங்கீகரிக்க மாட்டார்கள். घर पर भी उन्हें अंगीकार नहीं करते அவர்களை हैं, குறித்து விசாரிக்க கூட மாட்டார்கள். उनके बारे में पूछताछ भी नहीं करते हैं। அப்படிப்பட்டதான உலகத்துல வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். वैसे संसार में हम जी रहे உங்களுக்கு हैं। எல்லாம் இருந்தால், आपके पास सब कुछ है உங்களுக்கு तो, பணம் இருந்தால், आपके पास पैसे है तो, உங்களுக்கு வசதிகள் இருந்தால் आपके पास सब फैसिलिटी உங்களை है तो விசாரிப்பார்கள். आपको पूछताछ करेंगे, அவங்களுக்கு தஞ்ச அடைக்கலம் கொடுப்பார்கள். आपको ऐसी जगह देंगे। ஆனால் पर வேதம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, बाइबल में कहा गया है, கர்த்தர் நமக்கு அடைக்கலமானவர். परमेश्वर ही हमारा शरणागत है। ஹalleluya. हालेलुया। சிறுமைப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு, जो दीनता में रहने वाले लोगों के लिए, நெருக்கப்படுகிற பிள்ளைகளுக்கு कष्ट में रहने वाले लोगों அவர் के लिए அடைக்கலமாக அவர் वो காணப்படுகிறார். एक गढ़ है करके कहा அதேதான் गया है। 46 சங்கீதம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. वही 46 में कहा गया தேவன் है, நமக்கு அடைக்கலமும் பலனும் परमेश्वर हमारे शरणागत गढ़ और बल है, ஆபத்து காலத்துல जो संकट के அவர் समय पर அனுகூலமான துணையுமானவர். वो हमारा सहारा है, அவர் உங்களுக்கு துணையாக वो காணப்படுகிறார். हमारा सहारा है। நீங்க சிறுமைப்பட்டு காணப்படுகிறீர்களா? आप दीनता में है क्या? இந்த கண்ணீரோடு கூட நீங்க நின்று கொண்டு இருக்கிறீர்களா? आप आंसुओं के साथ हो அவர் क्या? உங்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுக்கிறவர். वो आपको सहारा देने அவர் वाला है, உங்களுக்கு தஞ்சமா இருக்கிறவர். वही आपका गढ़ है। சோத்திரம். நீங்க அண்ணால பாருங்க. आप हन्ना को देखते समय அண்ணாவுடைய வாழ்க்கை उसके जीवन में ஒரு சிறுமைப்பட்டதான ஒரு வாழ்க்கையாக காணப்பட்டது. एक दीनता का जैसे जीवन था। அவளோடு கூட அவளுக்கு இருக்கிற சக்களத்தி उनकी பெனினால் जो बहनीनाल சோத்திரம் அவளை சோத்திரம் ரொம்ப கொடுமைப்படுத்தினாள். बहुत ही उनको टॉर्चर करती थी। அவளுடைய இருதயத்தை அவ்வாறாக சோத்திரம் துக்கம் கொள்ளும்படியாக, उसके जो हृदय को दुख पहुंचाने की அவருடைய जैसे, இருதயத்தை உடைக்கும்படியாக जो हृदय को तोड़ने की जैसे பெனினால் பேசினாள். बेनिना ने बातें की। இதனால பாருங்க, इससे அன்னாளுடைய வாழ்க்கையானது जो हन्ना का ஒரு जीवन है, சிறுமைப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையாக காணப்பட்டது. एक दीनता की जैसे उसका जीवन था। அன்னாலை சிறுமை கர்த்தர் மாற்றினார். जो हन्ना की जो दीनता को परमेश्वर ने बदला। ஹalleluya. हालेलुया। ஏதோ ஒரு காரியத்துல कुछ तो कार्य में நீங்க சிறுமைப்பட்டு காணப்படுறீங்க. आप दीनता में हो क्या? உங்க சிறுமையினால आपके दीनता के நீங்க कारण வெளியே கூட போகாம இருக்கிறீங்க. आप बाहर भी नहीं निकलते हो, யாரிடத்துல பேச கூட உங்களுக்கு மனம் இல்லாம இருக்கிறீங்க. किसी से बातें करने के लिए भी मन नहीं உங்களுடைய है। வாழ்க்கையானது आपके जीवन ஒரு में கசந்து காணப்படுகிறது. एक कड़वापन की तरह है, வாழ்க்கை கசப்பாக இருக்கிறது. जो जीवन कड़वापन की तरह है। அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில वैसे स्थिति में நீ யோசித்து இன்றைக்கு உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கலாம். आप सोच कर बैठे हो, ஆனா ஆண்டவர் पर परमेश्वर உங்களுக்கு அவர் தஞ்சமானவர். वो आपका गढ़ है। அன்றைக்கு அன்னாளுடையதான சிறுமை மாற்றினவர். अन्ना की जो दीनता को बदला, அவளுக்கு குழந்தையை கொடுத்தவர். जो बच्चे की भाग्य அவர் दी, நிந்தையை மாற்றினவர். निंदा को बदले। இன்றைக்கு आज भी உங்களுடைய வாழ்க்கை என்ன நிந்தை இருக்கிறது, आपके जीवन में जो भी निंदा है, என்ன சிறுமை இருக்கிறது, जो भी दीनता है, அவர் உங்களுக்கு அடைக்கலமானவர். वो आपका शरणागत அவருடைய है। அடைக்கலத்துக்கு வந்து விடுங்கள். उनके गढ़ में आ जाओ, அவருடைய பாதத்துக்குள்ள வந்து விடுங்கள். उसके सामने आ जाओ। அன்னாளுக்கு எது அடைக்கலமாக காணப்பட்டது? जैसे उसका जो गढ़ था, ஆண்டவருடைய பாதம். उनका परमेश्वर का जो पैर, தேவனுடைய ஆலயத்தில் ஓடி வந்து விட்டாள். परमेश्वर के कलिशा में आते தேவன் थे, நோக்கி கண்ணீர் விடுத்து அவள் அழுதாள். परमेश्वर की ओर देखकर आंसू बहाकर ஆண்டவர் அதை रोती थी। பார்த்தார். परमेश्वर को அவருடைய परमेश्वर அவருடைய देखे, கண்ணீரை கண்டார். उसके आंसू को देखे, கண்ணீரை கண்டு उसके आंसू को சோத்திர देखे, அண்ணாலை अन्ना को அவர் சிறுமையை மாற்றி दीनता को बदल கர்த்தர் कर அவளை ஆசீர்வதித்தார். परमेश्वर ने आशीष किए। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த ஆசீர்வதித்த பிறகு ये आशीष करने के 1 बाद சாமுவேல் पहला सामुएल 12ஆம் அதிகாரம் दूसरा वचन அதுல 1 சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. पहले में कहा गया இப்ப है, என்ன சொல்கிறார் அவள்? क्या कहता என் है? இருதயம் கர்த்தருக்குள் களிகூறுகிறது. मेरा जो हृदय है परमेश्वर के अंदर आनंदित என் होता है, கொம்பு கர்த்தருக்குள் உயர்ந்திருக்கிறது.
यह जो सिंह है परमेश्वर की ओर ऊंचा है, என் பகைஞர் மேல जो मेरे तरफ थे வாய் திறந்திருக்கிறது. मुंह खोला गया है। உம்முடைய ரட்சிப்பினால் சந்தோஷப்படுகிறேன். आपके उद्धार से मैं खुश है। பாத்தீங்களா, சிறுமைப்பட்ட அன்னாருடைய வாழ்க்கையில दीनता को जो हन्ना का जीवन இப்போ है, இருதயம் களி கூறுகிறது. उसका जो हृदय अभी आनंदित है, உங்களுக்கு இருதயம் களி கூறும். आपका भी हृदय आनंदित உங்களுடைய होगा। கொம்பு உயர்த்தப்படும். आपका जो भी सिंह ऊंचा किया உம்முடைய जाएगा। ரட்சிப்பினால் சந்தோஷப்படுகிறேன் சொல்லுகிறாள் அவள். आप जो आपके उद्धार से खुश है करके कहा गया ஆம் है। தேவனுடைய பிள்ளைகளே, हम परमेश्वर के बच्चे, ஆண்டவர் परमेश्वर உங்களுடைய வாழ்க்கையில आपके जीवन அவர் में அடைக்கலமாய் இருந்து, वो आपका गढ़ बनकर, அவரே தஞ்சமாய் இருந்து वही आपका गढ़ உங்க बनकर ஜெபத்தை கேட்டு आपके प्रार्थना को அவர் உங்களை सुनकर ஆசீர்வதிப்பார். आपको आशीष करेगा। ஹalleluya. हालेलुया। உங்க கண்ணீர் எல்லாம் அவர் துடைப்பார். आपके आंसू को सब बदलेगा। உங்க கண்ணீருக்கு ஒரு பதில் உண்டு. आपके आंसू के लिए एक उत्तर है। நீங்க கவலைப்படாதங்க. चिंता मत உங்க करो, சிறுமையை கர்த்தர் மாற்றுவார். आपकी दीनता को परमेश्वर बदलेगा। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। மூன்றாவது பார்க்கலாமா? तीसरा हम देखते हैं 2 கொரிந்தியர் दूसरा कोरिन्थियों 7 அதிகாரம் 7वां अध्याय அங்க 6 சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. में 6 में कहा गया है, சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிற தேவன் என்று கொரிந்தியர்ல பவுல் சொல்லுகிறார். दिन लोगों को जो एक शांति देने वाला परमेश्वर करके कोरिन्थियों में पौलुस कहता है। ஆண்டவர் யாருக்கு ஆறுதல் கொடுக்கிறவரா? परमेश्वर किसको शांति देता है? சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு அவர் ஆறுதல் கொடுக்கிற தேவன். जो दीनता में रहता है उनको तसल्ली देता है। அவர் சகல விதமான ஆறுதலின் தேவன் என்று பவுல் சொல்லுகிறார். वो सब कार्यों में जो तसल्ली देने वाला परमेश्वर है करके भी पौलुस कहता है। ஹalleluya. हालेलुया। அப்ப ஆண்டவர் வந்து तो परमेश्वर எந்த தேவனுடைய பிள்ளைகள், जो भी परमेश्वर के बच्चे எந்த हैं, ஒரு பிள்ளைகள் जो भी बच्चे हैं சிறுமைப்பட்டு காணப்படுகிறார்களோ दीनता में है, அவர்களுக்கு அவர் ஆறுதல் செய்கிற वो தேவன். उनको तसल्ली देता है। ஹalleluya. हालेलुया। ஒரு தாய் தேற்றுவது போல जैसे माता संभालती है, கர்த்தர் உங்களை தேற்றுகிறார். परमेश्वर आपको संभालेगा। நீங்க எருசலேமில் தேற்றப்பட்டு சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. आप यरूशलेम में भी वैसे कही தேவனுடைய जाओगे कहा गया பிள்ளைகளே, है। परमेश्वर के நீங்க लोगों, சிறுமைப்பட்டு காணப்படுகிறீர்களா? आप दीनता में हो क्या? நீங்க ஏற்கனவே சிறுமைப்பட்டு இருக்கிறீங்க. आप दीनता में हो क्या? ஏற்கனவே துக்கத்தோடு இருக்கிறீங்க. दुख में है இன்னும் உங்களை துக்கப்படுத்திக் கொண்டு இருக்கிறீங்களா? और भी दुख पहुंचा रहे எனக்கு क्या? 2 ஆளு வார்த்தை பேச மாட்டார்களா? कोई में से तसल्ली की बातें नहीं எனக்கு करेंगे, எனக்கு அவர்கள் சந்தோஷமாக பேச மாட்டார்களா? मुझसे खुशी से बातें नहीं என்னுடைய करेंगे, வாழ்க்கையில ஒரு சமாதானமான காரியங்களை சொல்ல மாட்டார்களா? मेरे जीवन में एक शांति की बातें नहीं ஒருவேளை बोलेंगे। அப்படி யோசித்துக் கொண்டு இருக்கலாம். वैसे आप सोचते रहेंगे இன்றைக்கு तो ஆண்டவர் आज परमेश्वर உங்களுக்கு அவர் ஆறுதல் செய்கிறவர். आज तुम्हें शांति ஏதோ ஒரு देगा। காரியத்தினால किसी कार्य से நீங்க ஆறுதல் இல்லாம இருக்கிறீங்க, आप शांति के बगैर हो, சந்தோஷம் இல்லாம இருக்கிறீங்க, खुशी के बगैर हो, சமாதானம் இல்லாம காணப்படுறீங்க. समाधान के बिना हो, வெளியே ஏதோ நீங்க சிரித்து இருக்கிறீங்க, बाहर हंसते हो, வெளியே பார்க்கும்போது நீங்க சிரிப்பா இருக்கிறீங்க, बाहर हंसते रहते ஆனா हो, இருதயமோ और हृदय के अंदर அழுது கொண்டு இருக்கிறது. दुखी है। ஏதோ ஒரு சம்பவம், कुछ ना कुछ संभव, ஏதோ ஒரு இழப்பு, कुछ तो एक खोनापन, ஏதோ ஒரு காரியம் कुछ तो कार्य உங்களை அழித்து கொண்டு இருக்கிறது. आपके अंदर है, உங்க இருதயத்தை அது சோதனம் துக்கப்படுத்திக் கொண்டு இருக்கிறது. आपके हृदय को दुख पहुंचा நீங்க रहा ஆறுதல் है, இல்லாம வாழ்ந்து கொண்டு आप இருக்கிறீங்க. एक शांति के बिना जी रहे உங்கள்ட்ட हो। கேட்காங்க, आपसे पूछते நீங்க हैं எப்படி இருக்கிறீங்க? आप कैसे ஏதோ हो? நான் இருக்கிறேன், हम हैं, நான் நல்லா இருக்கிறேன், मैं ठीक हूँ, வாய்னால சொல்லுதீங்க. मुझ से बोल ஆனா देते हो, இருதயமோ पर हृदय के அழுது अंदर கொண்டு இருக்கிறது, रोते रहते हो, துக்கத்தினால் நிறைந்து கொண்டு இருக்கிறது. दुख से भर रहा है, ஆறுதலா வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறீங்க. तसल्ली के बिना जी रहे நீங்க हो। ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर அவர் कहता உங்களுக்கு है, ஆறுதல் वो கொடுக்கிறவர். तुम्हें शांति देता ஒரு है, தாயை போல, एक माता के ஒரு समान, தகப்பனை போல एक पिता के समान, உங்களை தோளிலே ஏந்தி आपको कंधे पर உங்களை लेकर, உங்களை சுமந்து आपको उठाकर, உங்களை ஆண்டவர் ஆறுதல் படுத்துவார். आपको वो तसल्ली देगा। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. ஏன் சொன்னா क्योंकि நம்ம ஆண்டவராகிய கர்த்தர் हमारा परमेश्वर यहोवा எல்லா விதத்திலும் सभी कार्यों में அவர் சிறுமை அவர் அனுபவித்திருக்கிறார். उन्होंने दीनता को सहा है, எல்லா விதத்திலும் सभी कार्यों அவர் में நம்மை விட हमसे भी அவர் அதிகமாக अधिक அவர் பாடுகளை அனுபவித்திருக்கிறார். समस्या को उन्होंने किया அவர் है, துக்கங்களை அனுபவித்திருக்கிறார். दुखों को अनुभव किया அவர் है, பிரச்சனைகளை जो அனுபவித்திருக்கிறார். समस्या को उन्होंने अनुभव किया அவரை है, கூட उन्हें भी இந்த உலகம் வெறுத்தது. इस संसार भी அவர் नफरत करता அவருக்கு था, சொந்தமானவர்கள் கூட उनके जो साथ में थे இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை, यीशु को नहीं अपनाए, இயேசுவை அங்கீகரிக்கவில்லை, यीशु को अंगीकार नहीं இயேசுவை किए, வெறுத்தார்கள். यीशु को नफरत உங்களை की, வெறுத்து கொண்டு இருக்கிறாங்களா? आपको भी नफरत कर रहे हैं உங்களுக்கு क्या? ஆறுதல் சொல்ல வந்தவர்கள் आपको जो शांति देने आने உங்களை वाले लोग சொந்தம் திட்டி விட்டு போய் கொண்டு இருக்கிறார்களா? आपको डांट कर जा रहे हैं உங்களை क्या? பேசி விட்டு போய் விட்டார்களா? आप ऐसे चिल्ला कर जा रहे हैं இன்றைக்கு क्या? आज அந்த ஆண்டவர் परमेश्वर உங்களை ஆறுதல் படுத்துகிறவர் आपको शांति தம்முடைய देगा, கரத்திலே ஏந்தி आपके अपने हाथ में உள்ளம் उठाकर
கைகளை வரைந்து अपने हथेली में அவர் சொல்லுகிறார், वो कहता है, மகனே बेटा மகளே बेटी நீ கலங்காத, तू डर मत, உனக்கு நான் ஆறுதல் செய்கிற தேவன், मैं तुझे शांति देने वाला உன்னை परमेश्वर हूँ, ஆசீர்வதிக்கிற தேவன், मैं तुझे आशीष करने உன்னுடைய वाला சிறுமை परमेश्वर நான் हूँ, மாற்றுகிற தேவன், तेरे दीनता को बदलने இந்த वाला परमेश्वर உலகத்துல हूँ, इस संसार உன்னை में வாழ வைக்கிற தேவன், तुझे अच्छा रखने वाला உன்னுடைய परमेश्वर हूँ, கண்ணீரை துடைக்கிற தேவன், तेरे आंसू को पोंछने நீ वाला கலங்காத, परमेश्वर हूँ, तू डरो நீ मत, திகையாத, डर मत, நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன், मैं तेरे साथ இந்த हूँ, உலகத்தின் முடிவு பரியந்தமும் इस संसार के अंत तक சகல நாட்களிலும் सारे दिनों நான் में கூட இருக்கிறேன், मैं तेरे साथ அவர் हूँ, ஆறுதல் படுத்திக் கொண்டு இருக்கிறார். उसे वो तसल्ली देता அவர்தான் है, ஆண்டவர். वही परमेश्वर எந்த है, கடவுளும் कोई और देवता, எந்த விதமான கடவுள்களும் कोई भी तरह के देवता சோத்திரம் மனுஷனை ஆறுதல் படுத்த முடியாது. मनुष्य को तसल्ली नहीं दे ஆனால் सकते हैं, ஆண்டவரே पर परमेश्वर நம்முடைய தெய்வமோ हमारा जो நம்மளை देवता ஆறுதல் படுத்துகிற தேவன். हमें तसल्ली देता உலகத்துல है, பலவிதமான காரியங்களை சொல்லுகிறார்கள், संसार में कई सारे बातें कहते हैं, பலவிதமான சோத்திரம் காரியங்கள் நடக்கிறது, कई सारे कार्य चल रहा ஆனா है, ஜனங்களுக்கு சமாதானம் இல்லை, पर लोगों को शांति नहीं அவர்களுக்கு है, வாழ்க்கையில சந்தோஷம் இல்லை, उनके जीवन में खुशी नहीं है, ஆறுதலுக்காக தவித்துக் கொண்டு तसल्ली இருக்கிறார்கள், के लिए वो ऐसे रो रहे हैं, சமாதானத்துக்காக ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள், शांति के लिए दौड़ रहे हैं, வாழ்க்கையில நிம்மதி இல்லை. शांति नहीं है जीवन ஆனால் में, இன்றைக்கு आज ஆண்டவர் परमेश्वर இதை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற इसे सुनकर நீ सुनने யாரா वाले, இருந்தாலும் कोई भी हो, உன் வாழ்க்கை முடிந்தது, हमारा जीवन खत्म இனிமே हो நான் गया, எழும்ப முடியாது, मैं उठ नहीं सकता, இனிமே நான் எனக்கு வாழ்க்கை இல்லை, मुझे जीवन नहीं அழுது है, கொண்டு இருக்கிறீங்களா, ऐसे रो रहे हो கண்ணீரோடு क्या? உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கிறீர்களா, आंसू के साथ बैठे இந்த हो क्या? வார்த்தை ये शब्द உங்கள் மேலே आपके ऊपर, உங்களுக்கு நேராக आपके அது இறங்கி வருகிறது, आपके समुख அவர் आ உங்களை रहा है, ஆறுதல் படுத்திக் கொண்டு वो இருக்கிறார். आपको तसल्ली देता है, உங்க வாழ்க்கையை आपके जीवन को செழிப்பாக அவர் மாற்றுவார். अच्छी रीति से बदलेगा, ஆமென். आमेन, அல்லேலூயா. हालेलुया, வேதத்திலே शास्त्र में இயேசுவுக்கு சொல்லப்பட்டு यीशु இருக்கிறது, के बारे में कहा गया है, ஆதலால் इसलिए அவர் தாமே वही சோதிக்கப்பட்டு பாடுபட்டதினாலே जो जो समस्याओं के बीच से आए हैं, அவர் சோதிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு जो जो समस्या में है, உதவி செய்ய அவர் வல்லவராய் காணப்படுகிறார். उसको हेल्प करने के लिए वो अच्छा அவர் है, எப்படிப்பட்டவரா? कैसा है वो, சோதிக்கப்படுகிற பிள்ளைகளுக்கு, जो जो समस्याओं के बीच में है, இல்லனா துக்கப்படுகிற பிள்ளைகளுக்கு, जो दुखित है, ஆறுதலற்ற பிள்ளைகளுக்கு जो जिसको तसल्ली नहीं அவர் है, உதவி செய்கிறவர். उन्हें वो मदद करता है, அல்லேலூயா. हालेलुया, அவர் உதவி செய்கிற தேவன். वो मदद करता है, அந்த உதவி செய்கிற தேவன் वो जो मदद करने वाला உங்களை परमेश्वर ஆறுதல் படுத்துகிறவரா காணப்படுகிறார். आपको वो तसल्ली देने वाला நீங்க है, கண்ணீர் விட அவசியம் இல்லை. आप आंसू बहाने की जरूरत உங்க नहीं है, சிறுமைய आपकी दीनता को ஆண்டவர் மாற்றி परमेश्वर बदल உங்களை कर அவர் ஆறுதல் படுத்தி आपको तसल्ली உங்களை देकर அவர் உயர்த்துவார். आपको ऊंचा करेगा, ஹalleluya. हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया, அந்த தேவன் நல்லவர். वो परमेश्वर अच्छा है, வேதத்தில் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, शास्त्र में कहा गया है, மெய்யாகவே सचमुच அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு हमारे सब समस्या को उसने நம்முடைய उठाया, துக்கங்களை அவர் சுமந்தார். हमारे दुखों को उसने நம்முடைய उठाया, துக்கங்களை எல்லாம் சுமந்து இருக்கிறார் அவர். हमारे दुखों को उसने उठाया உங்க है, சிறுமை எல்லாவற்றையும் அவர் பார்த்து இருக்கிறார். आपकी दीनता को उसने देखा है, அவர் உங்களை आपको ஒருபோதும் அவர் கைவிட மாட்டார். आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, ஹalleluya. हालेलुया, வியாதிப்பட்டு சிறுமையோடு காணப்படுகிறீர்களா? बीमारी से दीनता में हो क्या, உங்க வியாதியிலிருந்து आपकी बीमारी அவர் से உங்களுக்கு விடுதலை आपको கொடுக்கிறவர். छुटकारा देगा, வியாதியிலிருந்து बीमारी அவர் से உங்களுக்கு மீட்பை கொடுத்து इस छुटकारा உங்க देकर வாழ்க்கையை செழிப்பாக அவர் மாற பண்ணுகிற தேவன். आपके जो जीवन को अच्छी तरह से बदलेगा, ஹalleluya. हालेलुया, சிறுமைப்பட்டவர்களை जो दीनता में है ஆண்டவர் परमेश्वर அவர் ஆறுதல் செய்கிற ஒரு தேவன். उन्हें तसल्ली देने वाला परमेश्वर அவர் है, வானத்தை பூமி உண்டாக்கினவர். वो आकाश और पृथ्वी को बनाया அவர் है, சகல அதிகாரம் படைத்தவர். सभी अधिकार का है, அத உதவி செய்கிற ஆண்டவர் जो मदद करने वाला இன்றைக்கு परमेश्वर आज भी உங்க வீட்டுக்குள்ளாக आपके घर के உங்க अंदर அறைக்குள்ளாக आपके कमरे में அவர் பிரவேசித்துக் கொண்டே वो இருக்கிறார். प्रवेश कर रहा है, ஹalleluya. हालेलुया, அவர் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். आप उन्हें अपनाइए, அந்த ஆண்டவரை வரவேற்றுங்கள். वो परमेश्वर को आप அவரை நோக்கி स्वीकारिए, கூப்பிடுங்கள். उसकी ओर पुकारिए, அவரை நோக்கி நீங்க பார்க்கும் பொழுது उसकी ओर देखते समय அவருடைய முகத்தை वो आपके मुंह को அவர் வெட்கப்படுத்துகிற தேவன் அல்ல. लज्जित होने नहीं देंगे, ஹalleluya. हालेलुया, ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவர் தெரியுமா? हमारा परमेश्वर कैसा है पता முடியாத है, காரியங்களை जो नहीं हो सकता அவர் है முடிய பண்ணுகிற தேவன். संभव करने वाला ஏதோ ஒரு परमेश्वर, காரியம் முடியவில்லையா? कुछ कार्य नहीं हुआ है ஏதோ क्या, ஒரு காரியம் நடக்கவில்லையா? कुछ कार्य नहीं हुआ है நம்முடைய क्या, தேவன் हमारा परमेश्वर உங்கள் தேவன் आपका அதை परमेश्वर செய்வதற்கு அவர் வல்லமை உள்ளவர். उसे करने के लिए वो काफी है, ஆமென். हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया, அவர் சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு वो जो दीनता के लोगों அவர் को ஆறுதல் செய்கிற वो தேவன். तसल्ली देने वाला परमेश्वर சரி, है, அமெரிக்கா தேசத்துல अमेरिका के देश ஒரு में நடந்த சம்பவம். एक हुआ संभव ஒரு है, பெரிய பணக்காரர் காணப்பட்டார். एक अमीर व्यक्ति थे, அவருக்கு 60 சோதரம் ஏக்கர்ல பெரிய நிலம் அவருக்கு காணப்பட்டது. उनके पास 60 एकर्स में ऐसे जगह था, அந்த 60 ஏக்கர் நிலத்துல वो 60 एकड़ में அவர் பயிரிடும்படியாக சோதரம் அவ்வாறாக
அந்த பயிர்களை அந்த நிலத்துல விதைத்தார். वो फसल ये करने के लिए उस जगह पर वो कार्य किए। அந்த பயிரானது वो जो फसल है, அதாவது சோத்திரம், அதாவது அது ஆசீர்வாதமான அந்த வெட்டப்பட்ட நிலைமையில வரும் பொழுது, जब वो आशीष के तौर पर वो काटने के समय पर आते அது समय, அறுவடைக்கு வரும் பொழுது वो काटने की स्थिति में आते ஒரு समय திடீர்னு பார்த்தா एक दिन अचानक से சோத்திரம் அந்த வயலில் இருக்கிறதான அந்த பயிர்கள் எல்லாம் वो जो खेतों की जब फसल है, எல்லாம் அப்படியாக சோத்திரம் இதுல பூச்சி கடித்து எல்லாம் அழிந்து போய் விட்டது. कुछ तो काट कर वो सब ऐसे नाश हो गया था। சோத்திரம் அதனால उसके वजह से இப்ப எப்படி இந்த சோத்திரம் வைரஸ் தேசம் முழுதும் பரவி கொண்டு இருக்கிறது, जैसे अभी देश में पूरा वायरस फैल चुका உலகம் है, முழுதும் பரவி கொண்டு இருக்கிறது, पूरे संसार में फैल चुका है, அதே போல वैसे ही அந்த பூச்சிகள் கடித்ததுனால जो सब थे, அந்த கொடிய வியாதியினால वो जो बीमारी से பாருங்க எல்லா விதமான பயிர்களும் அவ்வாறாக வளர விடாம அது மடிந்து போய்விட்டது. जब फसल को उगने बढ़ाने नहीं दिया, वैसे ही कर दिया था। இதனால் அரசாங்கம் என்ன செய்தது சொன்னால், इसे गवर्नमेंट ने क्या किया, இனிமே இதை இப்படி விட்டு விட்டால் इसे ऐसे ही छोड़ दे तो இந்த கொடிய வியாதி ये जो बीमारी, இல்லனா சோதர இந்த புழு பூச்சியானது ये जो कीड़ा है, மற்ற வயல் அழிக்கும் என்று சொல்லி दूसरे की भी फसल को ये करेगा அரசாங்கம் என்ன करके செய்தது சொன்னால், गवर्नमेंट ने क्या किया, இவருடைய 60 ஏக்கர் நிலத்தையும் इनके जो 60 एकड़ जो जगह को பெட்ரோலை ஊற்றி पेट्रोल को डालकर எல்லாவற்றையும் எரித்து விட்டார்கள். सब कुछ जला दिए। ரொம்ப மனவேதனையோடு காணப்பட்டார். बहुत ही मन की वेदना में थे, எல்லாம் இழந்து போய் காணப்பட்டார். कुछ खोकर बैठे थे, ஏகப்பட்ட பணத்தை அதற்கு அவர் போட்டார். बहुत सारे पैसे उसके लिए डाले இந்த थे। நிலத்துல பணம் போட்டாதான் जब हम पैसे डाले तो ही சோத்திரம் அதை நம்ம எடுக்க முடியும். நம்மளா கிடைக்கிறது सब कुछ ऐसे नाश हो गया था, இருக்கிற வழியே இல்லை. उनके पास कुछ चारा नहीं இனிமே था, தற்கொலை தான் பண்ண வேண்டும், सुसाइड ही करना है, இனிமே என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி क्या करना है करके கலங்குகிற நேரத்துல से दुखी के समय மறுநாள் पर ஞாயிற்றுக்கிழமை जो नेक्स्ट वीक ஒரு संडे எண்ணம் था, வந்தது, एक सोच आया, நம்ம ஆலயத்துக்கு போவோம், हम कलिशा में जाएंगे, ஆலயத்துக்கு போன பிறகு कलिशा से जाने के நம்முடைய बाद வாழ்க்கையை மாய்த்துக் கொள்வோம் என்று சொல்லி हमारे जीवन को ये कर लेंगे அவர் ஆலை करके நேராக கடந்து वो சென்றார். कलिशा की ओर गए, ஆலயத்திலே தேவனை ஆராதித்தார், और कलिशा में आराधना की, ஆலயத்திலே தேவனை துதித்தார், और कलिशा में परमेश्वर की स्तुति ஆண்டவர் की, நாமத்தை அவர் உயர்த்தி மகிமைப்படுத்தினார். परमेश्वर के नाम की ऊंचा महिमा की, கர்த்தர் அவருடைய எல்லா விண்ணப்பத்தை கேட்டு परमेश्वर उसकी सब विनती को அவர் सुनकर, அவருடைய சொந்த சிறுமையை பார்த்து उसकी दीनता को देखकर, அந்த அருமையான சுதர பணக்காரரை, वो जो अमीर को, அந்த செல்வந்தரை वो जो अमीर को கர்த்தர் மறுபடியுமாக वापस से அவர் ஆசீர்வதித்து आशीष ஒரு करके வாழ்க்கையை கொடுத்து अच्छा जीवन அவருடைய देकर நிலத்துல उनकी जो खेती ஒரு में பெரிய ஆசீர்வாதத்தை கட்டளையிட்டார் என்று சொல்லி நாம் ஆசீர்வதித்தோம். அதுல उसमें बहुत आशीष दिया करके हम देखते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। இன்றைக்கும் आज भी அதே ஆண்டவர் वही அவர் परमेश्वर ஜீவிக்கிறார். वो जीवित है, எந்த சூழ்நிலையிலும் कोई भी स्थिति நீங்க में தேவனை ஆராதிக்கும் பொழுது, परमेश्वर की आराधना करते அவருடைய समय, நாமத்தை உயர்த்தும் பொழுது, उनके नाम की महिमा करते அவரை समय, துதிக்கும் பொழுது स्तुति करते समय பாருங்க देखो உங்க சிறுமையானது கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் அவர் மாற்றுவார். आपकी दीनता को परमेश्वर बदलेगा। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। அதைத்தான் சோத்திரம் தாவீதும் சொல்லுகிறார். वही दाऊद कहता है, சிறுமைப்பட்டவர்கள் जो दीनता के அதை हैं கேட்டு மகிழ்வார்கள். उसे सुनकर आनंदित நாம் होंगे। ஒருமித்து हम एक साथ கர்த்தர் मिलकर நாமத்தை உயர்த்துவோமாக. परमेश्वर के नाम को ऊंचा நீங்க करेंगे। தேவ நாமத்தை உயர்த்தும் பொழுது, हम परमेश्वर के नाम की ऊंचा நீங்க करते தேவனை समय, ஆராதிக்கும் பொழுது, परमेश्वर की आराधना करते அவரை समय, துதிக்கும் பொழுது स्तुति करते உங்க समय வாழ்க்கை மாத்திரமல்ல आपका जीवन केवल नहीं, மற்றவருடைய எல்லாருடைய வாழ்க்கையை மாற்ற கர்த்தர் வல்லமை உள்ளவர். सभी का जो जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। ஹalleluya. हालेलुया। உங்க சிறுமை கர்த்தர் மாற்றுவார். आपकी दीनता को परमेश्वर बदलेगा। யோபுவின் சிறுமை கர்த்தர் மாற்றினார். अय्यूब की दीनता को परमेश्वर ने बदला। அன்னாளின் சிறுமை கர்த்தர் மாற்றினார். अन्ना की जो दीनता को परमेश्वर ने बदला, சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு ஆண்டவர் அடைக்கலமும் அவர் தஞ்சமா காணப்பட்டார். जो दीनता में उनको वो गढ़ और ऊंचा गढ़ அது மாத்திரமல்ல, वही नहीं, சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு दीनता के लोगों அவர் को ஆறுதலின் தேவனா वो காணப்பட்டார். शांति का परमेश्वर है। இந்த வாரத்துல इस हफ्ते में இந்த வசனத்தின் மூலமாக इस वचन के द्वारा கர்த்தர் உங்களோடு இடைப்பட்டு இருக்கிறார். परमेश्वर आपसे बातें உங்க करे, வாழ்க்கையில आपके जीवन ஒரு में செழிப்பு கடந்து வரும், एक अच्छापन आएगा, ஒரு ஆசீர்வாதம் கடந்து வரும். एक आशीष आएगा। கர்த்தர் தாமே परमेश्वर இந்த வார்த்தையின் மூலமாக इस वचन के அவர் द्वारा உங்களோடு கர்த்தர் பேசுவாராக. आपसे परमेश्वर बातें கர்த்தர் करे। நல்லவர், परमेश्वर अच्छा அவருடைய है, கிருபை என்றும் உள்ளது. परमेश्वर का अनुग्रह अच्छा Thank है। you Lord. புயல் வீசும் கடலில் தடுமாறும் படகை தாங்கிடும் நங்கூரமே, புயல் வீசும் கடலில் தடுமாறும் படகை தாங்கிடும் நங்கூரமே, தாங்கிடும் நங்கூரமே, தீனம் தாங்கிடும் நங்கூரமே, ஆட்கொண்ட தெய்வம் திருப்பாதம் அமர்ந்து
ஆறுதலடைகின்றேன், அமைதி பெறுகின்றேன். ஆட்கொண்ட தெய்வம் திருப்பாதம் அமர்ந்து ஆறுதலடைகின்றேன், அமைதி பெறுகின்றேன். நிலையற்ற வாழ்வே நிம்மதியே நீங்காத பேரின்பமே. நிலையற்ற வாழ்வே நிம்மதியே நீங்காத பேரின்பமே. நீங்காத பேரின்பமே. என்னை விட்டு நீங்காத பேரின்பமே. ஆட்கொண்ட தெய்வம் திருப்பாதம் அமர்ந்து ஆறுதலடைகின்றேன், அமைதி பெறுகின்றேன். ஆட்கொண்ட தெய்வம் திருப்பாதம் அமர்ந்து ஆறுதலடைகின்றேன், அமைதி பெறுகின்றேன். ஆட்கொண்ட தெய்வம் திருப்பாதம் அமர்ந்து ஆறுதலடைகின்றேன், அமைதி பெறுகின்றேன். நல்ல தகப்பனே உமக்கு நன்றி அப்பா. अच्छे पिता आपको धन्यवाद करते हैं। வசனம் மூலமா எங்களோடு நீர் பேசியிருக்கிற உமக்கு நன்றி. वचन के द्वारा आपने हमसे बातें की, इसलिए आपको धन्यवाद। சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு दीनता के लोगों को நீர் அடைக்கலமாய் இருக்கிறீர். आप एक गढ़ है। சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு दीनता के लोगों को நீ தஞ்சமா இருக்கிறீர் आप ஆண்டவரே. ऊंचा गढ़ है। சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு ஆண்டவரே दीनता के लोगों को நீ ஆறுதல் செய்கிற தேவன் அப்பா. आप तसल्ली देने वाले हो। யோபுவை ஆசீர்வதித்தது போல अय्यूब को आशीष की जैसे, அவருடைய சிறுமையை மாற்றினது போல उसके दीनता को जैसे बदले। இந்த வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டு இந்த பிள்ளைடைய வாழ்க்கையில ये जो वचन सुनने वाले आपके बच्चों के जीवन ஏதோ में ஒரு சிறுமை இருக்கலாம், कुछ ना कुछ दीनता होगा, ஏதோ ஒரு சிறையிருப்பு இருக்கலாம் कुछ ஆண்டவரே. ना कुछ समस्या होंगे। எல்லாவற்றிலும் सभी में, உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு விடுதலை கொடுத்து सब में छुटकारा உம்முடைய देकर, பிள்ளைகளை ஆறுதல் படுத்தி आप इन बच्चों को तसल्ली அவருடைய देकर ஒவ்வொரு பேரையும் உயர்த்தும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம். हर एक को ऊंचा करने के लिए हम प्रार्थना करते உம்முடைய हैं। வசனமானது आपका जो वचन है அவருடைய வாழ்க்கையில उनके जीवन பெரிய में மாற்றங்களை கொண்டு வரும்படியாக बड़ी செபிக்கிறேன். बदलावट को लेकर आने के लिए हम प्रार्थना நிம்மதியை करते हैं। கொடுங்க ஆண்டவரே. एक तसल्ली ஒரு दीजिए। நிம்மதி இல்லாத உலகத்துல, एक शांति बगैर की संसार சமாதானம் में, இல்லாத உலகத்துல समाधान के बिना நாங்கள் संसार வாழ்ந்து में கொண்டு हम இருக்கிறோம். जी रहे हैं। உடைய பிள்ளைகளுக்கு சமாதானத்தையும் आपके बच्चों को समाधान को, சந்தோஷத்தையும் खुशी को கொடுத்து ஆசீர்வதிக்கும்படியாக செபிக்கிறோம். लेकर आशीष करने के लिए हम ஏதோ प्रार्थना करते हैं। வியாதியினால कोई बीमारी से சிறுமைப்பட்டு இருக்கலாம், दीनता में है, இழப்பினால சிறுமைப்பட்டு இருக்கலாம். होकर दीनता में है, எல்லா இழப்பை மாற்றி सब कुछ बदल உடைய कर பிள்ளைகளை மகிழ பண்ணும்படியாக நாங்கள் बच्चों செபிக்கிறோம். को अच्छा करने के लिए प्रार्थना ரெண்டு करते हैं। தனியாக பலனை கொடுங்க. गुना गुना आशीष दी, ரெண்டு மடங்கு ஆசீர்வாதத்தை கட்டளையிடும்படியாக செபிக்கிறேன். दो गुना आशीष देने के लिए தேவ प्रयत्न பாதுகாப்பு करते हैं। இருக்கட்டும். परमेश्वर के साथ रहना, எல்லாரையும் தாழ்த்துகிறோம். अपने आप को दिन करते हैं, ஆசீர்வதியும், आशीष कीजिए, நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும். आपके नाम की महिमा करते ஜெபத்தை हैं, கட்டி நன்றி, अपने प्रार्थना सुना அற்புதம் धन्यवाद, செய்துவிட்டு நன்றி, अद्भुत कार्य किए धन्यवाद, சிறுமை மாற்றினீர் நன்றி. दीनता को बदले धन्यवाद। இயேசுவின் ஜெபங்கள் நல்ல பிதாவே, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, ஆமென். आमीन। என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, முழுவதுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். ये मेरे मन यहोवा को धन्य कर, ये मेरे मन उसको पवित्र नाम को धन्य कर, ये मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसने क्यों सारे कर वो कभी ना बोलना. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தர் இயேசுவுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியின் ஐக்கியமும் நம்மோடு கூட உலகத்தில் பரிசுத்தவான்களோடு கூட என்றென்றைக்கும் சதா காலமும் இருப்பதாக. ஆமென். அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया।
காட் bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. எல்லாருக்கும் ஸ்தோத்திரம். பிரைஸ் எல்லாம்.